السلام علیکم۔ گزشتہ کچھ دنوں سے ایک گفتگو سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی، اور سید ظاہر عباس صاحب حفظ اللہ تعالی حوزہ علمیہ قم میں مدرس ہیں۔ انہوں نے احمد جاوید صاحب کی دو جگہوں پر ہونے والی گفتگو کو موضوع بحث بناتے ہوئے اس پر ایک علمی نقد کیا تھا، جس کو جاوید صاحب نے بہت سراہا، اور مجھے بھی کہا کہ میری طرف سے شکریہ ادا کرے، اور شاید کسی اور کے ذریعے سے بھی جاوید صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ تو طالب علم کو بہت تمنا اور خواہش تھی کہ اس موضوع پر، چونکہ میرا اپنا بھی ایک اس میں دلچسپی ہے بہت زیادہ، اسلامی حکومت، ولایت فقیہ وغیرہ سے، تو مجھے یہ خواہش تھی کہ اس موضوع پر ایک علمی گفتگو ہو جائے۔ تو ہماری درخواست کو دونوں مہمانوں نے قبول کیا، اور ایک طالب علم کو یہ عزت بخشی دونوں ہمارے بزرگان نے کہ میں اس پروگرام کو جو ہے کی میزبانی میں کروں۔ تو سعید ظاہر عباس صاحب کے ساتھ دو علماء کرام اور تھے، اور جنہوں نے اس گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ اس میں کچھ پوائنٹس جو میں نے دو بار وہ گفتگو سنی، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ مجھے بھی پوری طرح سے پتہ ہو، تو اس میں انہوں نے ولایت فقیہ کے تصور پر جاوید صاحب کی ایک گفتگو کے کچھ کلپس چلا کر بات کی کہ شیعت میں ولایت فقیہ کا تصور کیا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ولایت فقیہ کی مخالفت کرنے والے علماء جو جاوید صاحب نے اپنے گفتگو میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ کوئی متفقہ مسئلہ نہیں ہے، اس پہ انہوں نے تبصرہ فرمایا تھا۔ اور پھر اس میں کہ ایران کے اندر کیا لوگ سب کے سب اس تصور کو مانتے ہیں ولایت فقیہ کے، اس پہ اجماع ہے عوام کا، وہاں کے لوگوں کا، اس پہ بات کی تھی، تو اس پہ انہوں نے تبصرہ فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ ولایت فقیہ کا مقصد امام غائب کے لیے زمین سازی اور شیعت کا تحفظ اور تبلیغ شیعت وغیرہ، اس طرح کی جاوید صاحب کی کوئی بات انہوں نے چلائی تھی، اس پہ انہوں نے تبصرہ فرمایا تھا۔ اسی طرح ولایت فقیہ کے فوائد کے ساتھ اس کے کچھ نقصانات پہ جاوید صاحب نے بات کی تھی، تو اس پہ انہوں نے تبصرہ فرمایا تھا۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور پوائنٹس تھے، تو میں سب نہیں بتاتا ہوں، جن دوستوں نے وہ گفتگو نہیں سنی میں نے ان کے لیے یہ بتایا کہ اس کا پس منظر یہ ہے۔ تو اب اس میں دو تین پہلوؤں سے بات ہو سکتی ہے کہ ولایت فقیہ کی دینی حیثیت یا شرعی حیثیت خود اہل تشیع کی ہاں، دوسرا اس عملی طور پر جو موجود نظام ہے وہ ہے کیا، اور اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں، اور خود اسلام میں حکومت اور ریاست کا تعلق وغیرہ اس پہ۔ تو میں زیادہ دیر آپ دونوں کے اس گفتگو کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا، بس مجھے وہ یاد آ رہا ہے جاوید صاحب، جب آپ جیو پہ اور باقی چینلز پہ آپ مختلف اہل علم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اور خورشید احمد ندیم صاحب اور اس طرح کے لوگ بیٹھ کے آپ لوگوں کے درمیان وہ مباحثہ کراتے تو بہت مفید ہوتا تھا وہ، اور مجھے لگتا ہے کافی عرصے کے بعد ہم آپ کو اس روپ میں دوبارہ دیکھ رہے ہیں، تو بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ سعید ظاہر عباس صاحب، آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ، آپ نے بھی ٹائم دیا طالب علم کو اور بہت عزت بخشی۔ تو میں چاہوں گا کہ اگر گفتگو کی ابتدا ہم جاوید صاحب سے ہی کریں، کہ آپ اس حوالے سے اپنا جو آپ نے موقف بیان فرمایا ہے اس کو تھوڑا سا بتائیں، اور کس تناظر میں یہ بات آگے لے کے چلیں گے۔ وہ جو آپ نے مجھے وہ نکات بھجوائے ہیں نا آج کے یہی تمہاری والے تھے۔ گفتگو اب ہوا ہے، ان باتوں پر کی اصلاح کی گئی ہے، تو وہ میرے سامنے یہ رکھا ہوا ہے، تو میرا ذہن یہ بن چکا تھا کہ ان سوالات پہ مختصر کچھ اپنے معروضات، ٹھیک ہے۔ چاہے وہ صفائی کی شکل میں ہوں چاہے شکریہ کی صورت میں ہوں، کہ آپ نے اصلاح فرما دی۔ تو پہلا جو آپ کا بھیجا ہوا نقطہ ہے، وہ اس میں پہلا یہ ہے کہ کیا ولایت فقیہ کا تصور شیعیت میں نہیں پایا جاتا؟ تو اس پہ میری عرض یہ ہے کہ آج ہم مکالمے کی فضا کو ذرا زیادہ سے زیادہ غیر مذہبی کم از کم میں رکھنا چاہتا ہوں، تو اس بحث میں نہیں پڑتے۔ اس میں ظاہر عباس صاحب جو کہہ دیں گے کہ ولایت فقیہ کوئی اجماعی عقیدہ ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے، اور اس اس کا اطلاق بعد میں ہوا لیکن نظریہ شروع سے چلا آ رہا ہے، تو مجھے اسے ماننے میں تعامل نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی مکتب فکر کے معتقدات اور بائنڈنگ تصورات کو فیس ویلیو پہ لینا چاہیے کہ وہ کیا مان رہے ہیں۔ تو جب یہ بتائیں گے ہمیں ولایت فقیہ کی حیثیت تشیع میں کیا ہے، روایت میں، تو ہم اس پر جو کہنا ہوگا کہیں گے۔
پھر دوسری بات یہ ہے کہ ولایت فقیہ کی مذہبی حیثیت کا اس بات و انکار تو کا داخلی معاملہ ہے. جیسے اب امام مہدی کی ولادت پہ بہت سے شبہات ہیں، تو وہ میں نہیں اس طرف گئے. ایک صاحب نے پوچھا کہ بھئی وہ اس پہ کیا دلائل ہے، مگر میرے کوئی دلائل نہیں، کیونکہ جو ان کو مانتے ہیں اس حیثیت سے، غائب کی حیثیت سے، تو وہ جو کہیں ہم اس پہ بات کریں گے. تو اسی لیے اپنے تبصرے کو کوشش کروں گا کہ مذہبی کم اور فلسفیانہ، نفسیاتی، تمدنی بنیادوں پر زیادہ استوار کروں. تو ٹھیک اسی طرح دوسرا آپ نے فرمایا یہ سب باتیں آ جائیں گی، مطلب یہ کہ کیا ولایت فقیہ کی مخالفت کرنے والے علماء کا یہ خیال ہے کہ اس سے مہدویت کے تصور پر زد پڑتی ہے. تو علماء کا یہ خیال ہے، میں وہ کوٹ بھی کر سکتا ہوں علماء تشیع کا، لیکن پھر بھی کیونکہ وہ یہ زیادہ جانتے ہیں اپنے معاملات، تو میرے خیال میں اب میں تصور مہدی یا امام غائب کے تصور کو ایک تمدنی اور تاریخی کنسٹرکٹ سمجھ کے بات کر رہا ہوں، ایک ٹھیک اینڈ آف ٹائم کا آئیڈیل سمجھ کے. تو میرے خیال میں جس تصور مہدی کا مجھے علم ہے اہل تشیع میں مروج، اس میں میرے خیال میں مہدویت ہی پر نہیں امامت پر بھی پڑ سکتی ہے، یعنی ایز سچ امامت پر. اور اس میں ایک مختصر بات ابھی کہہ دیتا ہوں، بعد میں تو گفتگو چلے گی، کہ مثال کے طور پہ امام کے دو خواص ہیں جن میں سے کوئی منحا نہیں کیا جا سکتا. وہ ہے حجیت اور عصمت، کہ وہ اپنی ذات سے حجت ہے، اس کو باہر سے کوئی سند لانے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ ایک امام پہلے امام کا نائب نہیں ہوتا. یہ جیسے یہ کہ دوسرے امام گزرے تو اب جو تیسرے امام آئیں گے تو ان کو امام دوم کا نائب نہیں کہا جائے گا، وہ امام مستقل ہیں. صحیح تو اس میں اور دوسرے ہے عصمت. عصمت کا مطلب یہ ہے کہ باطنی حجت کے لائق بھی ہیں، یعنی اپنی ذات سے باطنی حجت ہیں، اور اپنے قول و فعل سے، اپنے فیصلوں سے وہ خارج پر اثر انداز ہو جانے والی غیر مشروط اور نان چیلنجبل حجت ہیں. اور اس حجیت کا دائرہ صرف دین تک نہیں ہے، وہ دنیا کے علوم میں بھی حجت ہیں. یہ جو میں اپنا جیسے آموختہ سا سنا رہا ہوں، تو یہ خصائص امامت ہیں. تو نائب امام جب ہم کہیں گے تو کاغذ پہ تو یہ ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ نائب ہے، وہ نفس امام نہیں. تو نائب امام ان خصائل کا حامل نہیں ہے، اور نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے، لیکن سیاسی دائرے میں ان دونوں پوزیشنز کا وارث ضرور ہے. عذرائے کرم اس پہ غور رہے. ہاں، وہ جیسے طالب جوہری صاحب کہتے ہیں نا، اس پہ غور رہے تو آج ہم بھی وہ. تو ٹھیک وارث ضرور ہے، اور اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے بعد میں. ابھی تو صحیح جیسے تاکہ ایک مباحث کی جیسے ایک فہرست بن جائے زائر صاحب کے یہاں. تیسرا یہ کہ خود ایران میں لوگوں کا ولایت فقیہ سے متعلق رویہ، وہ مجھے نہیں معلوم میں نے کیا کہا، یاد نہیں مطلب، لیکن اس کو دیکھ کر، اس عنوان کو دیکھ کر
کہ ایران کے داخلی حالات پر کسی بھی نظریاتی حکومت کی طرح، ریاست کی طرح، باہر والوں کے لیے بہت پردے تانے گئے ہیں۔ مطلب اتنے زیادہ پردے پڑے ہوئے ہیں کہ واقعی صورتحال تک رسائی بہت مشکل ہے۔ لیکن بعض شواہد ایسے ہیں جن سے جزوی طور پر ہی صحیح لیکن قابل اعتبار حد تک اتنا ضرور محسوس ہوتا ہے، یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ ظاہر صاحب اپنے ملاحظے میں رکھنے کے لیے، کہ اتنا ضرور محسوس ہوتا ہے کہ ولایت فقیہ کا، یعنی آج ولایت فقیہ کا ایران پر، ایرانیوں پر غلبہ ضرور ہے، لیکن قبولیت میں فرق پڑ رہا ہے۔ تغلب ہے، قبولیت میں فرق پڑ رہا ہے، خصوصاً شہری آبادیوں میں۔ تو خیر، یہ اس کی صحت اور اس کے غلط، اس اطلاع کی صحت اور غلط ہونے سے میرا خیال ہے کہ میرا بنیادی مقدمہ متاثر نہیں ہوگا وہ، کیونکہ عقلی ہے، تمدنی ہے وغیرہ۔ تیسرا آپ نے نقطہ دیا تھا، میں معذرت چاہتا ہوں تاکہ ایک جیسے ایک دور سا ہو جائے، وہ جو ٹھیک ایپیٹائزر ہوتا ہے نا، وہ اس میں زیادہ وقت لگتا ہے ڈنر کے مقابلے میں، تو یہ ایپیٹائزر کی طرح پیش کر رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے فنجان۔ تو ولایت فقیہ کا مقصد آپ نے لکھا، ولایت فقیہ کا مقصد امام غائب کے لیے زمین سازی اور شیعیت کا تحفظ اور تبلیغ، اور غیر شیعہ سے شیعہ کو بچانا، گویا یہ ان کے گولز ہیں۔ مطلب اس سے یہ لگ رہا ہے کہ میں نے ایسا کہا۔ جی جی تو اس کے جواب میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ غیر شیعہ سے شیعہ کو بچانا، یہ ایک بازاری سا فقرہ اور تصور ہے، اور جتنا میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں میرے ذہن میں اس طرح نہیں آئے گا، مطلب کم از کم اس میں کوئی حسن اظہار پیدا کرتا، تو اسے نظر انداز کر دیں۔ باقی میری ولایت فقیہ پر، مذہبی ولایت فقیہ، ولایت فقیہ کے مذہبی مقاصد، ان پر جو میری مجموعی رائے ہے، اس کا خام سا خلاصہ اس میں آ گیا ہے کہ امام غائب کے لیے ظاہر ہے، یہ کوئی طعنہ تھوڑی ہے کہ امام غائب کے لیے حالات کی سازگاری کا ماحول، یا لوگوں کو اس قابل رکھنا کہ وہ امام غائب کی نصرت کوالیفائی کر سکیں، تو یہ ولایت فقیہ کا ہے تو بہت ہی اچھا ہے، سب حکومتوں کا ہونا چاہیے۔ لیکن امام مہدی کا کوئی تصور کسی بھی مسلمان کے ذہن میں شیعہ یا سنی کا نہیں ہے، مطلب وہ آ کے قم میں قیام اور دیوبند پر چڑھائی نہیں کریں گے، تو وہ ایک امام کا تصور ہے ہر جگہ، مطلب کم از کم مسلمانوں کے، اور حتیٰ کہ اہل تشیع میں بھی، مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی، تو یہ زمیں سازی تک تو چلو ٹھیک ہے، ماحول کی سازگاری ہمارے مفاد میں، یعنی ہم اس لائق رہیں کہ وہ ظہور فرمائیں تو ہم ان کے ناصرین کی جماعت میں داخل ہو جائیں۔ لیکن شیعیت کا تحفظ اور تبلیغ، اس کو دو پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ میں مخالف شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے کی وجہ سے یہ بطور اعتراض اور بطور تان کہہ رہا ہوں، اس کے جواب آپ 10 طرح سے دے سکتے ہیں، تو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں اس طرح کی پوزیشن لے کے بات نہیں کرتا کیونکہ میں عالم نہیں ہوں، تو اگر میری پوزیشن دیکھی جائے کہ ایک آدمی
بالکل معروضی انداز سے مسالک اور مذاہب اور ادیان کی نفسیات اور تمدنی ساخت اور ان کے اصل مقاصد کو پیش نظر رکھ رہا ہے، ان کو غلط یا صحیح کہے بغیر۔ پہلی بات اس پہلو سے یہ ہے کہ یہ ولایت فقیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تشیع کا دفاع کرے، کیونکہ تشیع اور تسنن میں فرق یہ ہے کہ تشیع کل کا جز نہیں ہے، مطلب اپنی نظر میں، مطلب دین اور مذہب کا تعلق یہ اپنے لیے نہیں تجویز کرتے کہ دین اسلام، اس کا مذہب ایک تشیع۔ اہل سنت کی نفسیاتی ساخت یہ ہے کہ وہ کل کا جز ہیں اپنی نظر میں، ایک ٹرانسینڈنٹل ہول کا جز ہیں۔ تو وہ یہ اب اس کو بھی بھائی کسی مناظرانہ رنگ میں نہ دیکھا جائے، اس کا جواب بھی غیر مذہبی انداز سے دیا جائے۔ تو وہ اگر اس کی تبلیغ، اشاعت اور وہ جہاں جہاں ان کو خطرات درپیش ہیں اس کا سد باب یا استیصال کر رہے ہیں، زور سے، علم سے، مصلحت سے، کسی بھی انداز سے، تو باہر والے کو اس پر اعتراض نہیں محسوس ہوگا۔ مطلب کسی کو نہیں۔ اب ایک وہ رچرڈ دا لائن ہارٹڈ تھا، وہ عیسائیت کے لیے اٹھا تھا، تو میں اگر عیسائیوں سے کہوں کہ وہ تو عیسائیت کا محافظ بن کے اٹھا تھا تو انہیں برا نہیں لگے گا۔ یہی ہمیں اپنے اپنے معاملات میں بھی یہ رویہ رکھنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ یہ ابھی اتنا کہہ کے پھر یہ جلدی سے دو تین اور ہیں وہ کہہ دوں، پھر اس پہ ہم تفصیل کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ نبوت امامت سے فائق ہے، آپ نے لکھا ہے امامت کا مقام نبوت سے افضل ہے، تو اس پر میرے خیالات ہیں، لیکن یہ کہ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اس پہ بات کا آغاز کروں۔ یہ ایک بہت ٹچی مسئلہ سا بن گیا ہے اب، تو یہ ظاہر عباس صاحب ہی سے سوال بنا کر پوچھ لیجئے۔ تو ولایت فقیہ کے فوائد کے ساتھ نقصانات: تقیہ کا خاتمہ، ہر ملک کے شیعوں کی وفاداری بشکوک۔ مشکوک ہو گئی۔ یہ ہم بعد میں دیکھیں گے، اب آپ کریں تو اس پہ میں تفصیل سے بات کروں گا۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا جاوید صاحب، یہ اصل میں نے یہ جو پوائنٹس بنائے تھے نا، میں نے ظاہر صاحب کی گفتگو سن کر اپنی جی جی، یادداشت کے لیے بھی، اور مجھے یہ تھا کہ میں آپ کو یہ بھیج دوں کہ بھائی انہوں نے آپ بہت کی ان چیزوں شکریہ۔ پر بات کی، یہ میرا یہ نہیں تھا کہ میں، چونکہ میں نے ظاہر صاحب کو یہ پوائنٹس نہیں میں نے بھیجے تھے میں نے۔ کہا تک بھیجنے، میرا حافظہ اب ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو یاد کر جی جی کے۔ جی۔ تو بہت ظاہر صاحب کو میں مہربانی۔ نے، ظاہر صاحب کو میں نے یہ نکات اس لیے نہیں بھیجے تھے کیونکہ ان کی گفتگو سے میں نے یہ چیزیں نکالی تھی، تو ایسا نہ ہونا ہاں کہ یہ لگے کہ جیسے میں نے آپ کو کچھ پوائنٹس اس طرح سے، تو یہ ساری، ظاہر صاحب پہلے تو آپ بہت شکریہ، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو میں نے پوائنٹس جی جی نکالے ہیں آپ کی گفتگو سے، یہ بالکل صحیح ہوں پوائنٹس سے میں نے الفاظ اپنے رکھے ہیں، ظاہر سی بات ہے میں جلدی اس میں لکھ رہا تھا، تو اس میں کوئی میں نے غلط آپ کو لگ رہا ہے کہ جی جی کوئی نقطہ میں نے، اور باقی جو جاوید صاحب نے جس ترتیب سے بات کی، آپ بسم اللہ۔ نیٹ سلو ہو رہا ہے میری آواز آ رہی ہے شکری بھائی؟ جی 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 ہاں، بالکل آ رہی ہے۔ تھوڑا نیٹ کا پرابلم بن رہا ہے، نیٹ کوئی اور نہیں۔ شکری بھائی آواز آ رہی ہے میری؟ قرآن کے بالکل آواز بعد صاف آ رہی جی جی چلیں، نکات یہی ہیں جو آپ نے جاوید صاحب کو بھیجے اور انہوں نے ان پہ تبصرہ مختصر سا کیا ہے، وہی نکات تھے کہ جو انہوں نے اپنی تقریر میں یا جو بھی ان کا سیشن تھا اس میں انہوں نے بیان کیے تھے، اور ہم نے اس کے اوپر مختصر جو ہے وہ اپنا جواب دینے کی کوشش کی تھی۔ بہرحال جاوید صاحب نے جو ہے ابھی انہی نکات کو دوبارہ دہرایا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ گفتگو ہماری جو ہے وہ کس نہج پر چلتی ہے، لیکن ایک چیز کا میں اظہار ضرور کروں گا، اور اسی کے ساتھ ہی ہم جو ہے وہ بحث کو آگے لے کر چلیں گے۔ وہ یہ کہ بہرحال احمد جاوید صاحب کو کافی حد تک جو ہے وہ پڑھے لکھے افراد کے اندر جو ہے وہ سنا جاتا ہے۔ میں نے بھی کافی عرصہ پہلے
इनकी वीडियो चूँकि मुझे भी फ़लसफ़े से, इरफान से और इन चीज़ों से शगफ़ है, और मेरा मौजू भी यही है, और कई सालों से जो है इसके ऊपर जो है वो काम कर रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ। तो बहरहाल इनकी वीडियोस जब सामने आई तो मैंने उससे इस्तेफ़ादा करना शुरू किया। तो बहरहाल महसूस हुआ कि बहुत ही एक अच्छी शख्सियत हैं, पढ़ी लिखी शख्सियत हैं, और फ़लसफ़ा जो कि मौजू है एक अक़ली और एक बड़ा खुश किस्म का, और उर्दू ज़बान मुआशरा के जिसमें इस किस्म के मौजू को कभी सुना या समझने की जो है वो कोशिश नहीं की जाती। तो जावेद साहब जो हैं वो इस हवाले से काफ़ी मुआविन साबित हो रहे हैं उन अफराद के लिए कि जो इनके बाद एक फ़लसफ़ी मैदान में आकर जो है वो बात करेंगे। तो बहरहाल बड़ी खुशी होती थी इनको देख कर। लेकिन जब सूरत हाल सियासी हवाले से या समाजी हवाले से थोड़ी इन्होंने गुफ्तगू की, जिसमें एक साल पहले की शायद बात है, जिसमें इन्होंने गज़ा के ऊपर जो है वो गुफ्तगू फरमाई, और उसी में ही इनका वो लेक्चर था जिसमें इन्होंने विलायत फ़कीह के हवाले से बात की। और उसके बाद फिर एक रिएक्शन आया अल्लामा सैयद जवाद नकवी साहब की तरफ से, और उस उनके जवाब में भी जावेद अहमद साहब ने जो है वो अपनी गुजारिशात कुछ जो हैं वो पेश की थी। तो उनकी वो गुफ्तगू सुन के थोड़ा सा, आप यूँ कह लें कि थोड़ा सा धचका लगा था कि आगा साहब जो हैं वो बहरहाल जिस तरीके से एक आलिमाना जो है वो गुफ्तगू करते हैं, लेकिन हमें जो है वो इन दो गुफ्तगू में जो इन्होंने की थी, राय का इजहार करना, वो जैसा कि जावेद अहमद साहब भी जो हैं वो इस बात को मानते हैं, और उनका हमें अप्रिशिएट करना तनकीद के ऊपर इस बात की गवाही है, अमली सबूत है कि ये जो हैं वो इख्तलाफ राय को बुरा नहीं समझते हैं, इख्तलाफ राय को अपनी जो है वो एक हक़ इंसान का समझते हैं। मैं भी इसी तरह हूँ। मेरे नज़दीक भी जो है वो इख्तलाफ राय जो है वो होना चाहिए। अपने जो मुस्तनदात और दलाइल एविडेंस जो है मौजूद हैं उसकी बुनियाद के ऊपर बात करें। लेकिन हमें जो है उसमें थोड़ा सा जो लगा, अब तो वो जावेद साहब खुद चूँकि सामने मौजूद हैं वो इसकी वजाहत करेंगे, हमें इनकी गुफ्तगू में थोड़ा तअस्सुब महसूस हुआ, यानी एक मजहबी तअस्सुब। एक मर्तबा इंसान मज़हब से हट के गुफ्तगू करता है, उसका अंदाज बयां जो है वो और होता है। मसलन हम बहुत सारी तहलीलें सुनते हैं कि जो अहले सुन्नत के ऊपर भी कर रहे होते हैं, जैसे बाज़ वो अफराद के जो दीन से सरोकार नहीं रखते, एक ख़बर निगार की हैसियत से, एक तज्ज़िया निगार की हैसियत से तबसरा कर रहे होते हैं। लेकिन इनकी गुफ्तगू से जो है ना वो एक मजहबी रुझान लग रहा था, एक अकली तहलील जो है वो नहीं लग रही थी। बस इन्होंने उस बात का इजहार भी किया अपनी उस गुफ्तगू के अंदर कि तशय्यो जो है वो हमारे लिए जो है वो ख़तरनाक जो है वो साबित हो रही है, खुसूसन विलायत फ़कीह की सूरत में। और बहरहाल इस तरह की गुफ्तगू है कि आगा साहब जो हैं वो चूँकि रिकॉर्डेड चीज़ें मौजूद हैं, मैं भी उसका तकरार नहीं करना चाहता, मैं फ़कत अपना एहसास बयान कर रहा हूँ जी। कि वो एक एहसास हुआ इस तरह का, काफ़ी दिल दुखा, क्योंकि एक पसंदीदा शख्सियत हो और फिर इस तरह का एक रुझान अकली बुनियाद पे आना चाहिए, लेकिन जो है वो एक मजहबी रुझान को गलबा देते हुए, मजहबी आप ये कह लें कि ज़बान को इस्तेमाल करते हुए हमें ये लगा। अब बहरहाल जावेद साहब जो हैं वो ख़ुद इसकी वजाहत करेंगे, शायद हमने जो है वो इसको इस तरीके से पाया। तो उसमें बहरहाल आपने उसमें तशय्यो के खदशे का, गलबे का इजहार किया है, फिर आपने ये कहा गज़ा खा जीते या हारे, तशय्यो का फ़ायदा अहले सुन्नत का नुकसान है। तो तकरीबन आपकी जितनी भी ये बातें हैं ना वो मजहबी रुझान दे रही थी, यानी एक अकली तहलील नहीं थी। हमें जो एतराज़ था वो इस बात पे था, ना आपके इख्तिलाफ करने पर, कि आप मसलन विलायत फ़कीह की किसी पॉलिसी पर एतराज़ रखते हैं, आप विलायत फ़कीह के किसी नज़रिए पर इख्तिलाफ रखते हैं, आप विलायत फ़कीह के किसी मबने पर एतराज़ रखते हैं, किसी फाउंडेशन के ऊपर आप एतराज़ रखते हैं, तो वो हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। खूब आप एक अलग फ्रेम के अंदर रह रहे हैं, आपकी अपने मुतालात हैं, अपने आपकी जो है वो
सूरत हाल है, आपको हक हासिल है कि आप अपने ताईं अपनी मालूमात की हद तक जो कुछ जो आपने समझा सीखा और उसके बाद उसको पाया, उसको बयान करने का हक है। इख्तिलाफ हमारा इस बात पे है, तर्ज बयान के ऊपर, और उसमें एक मजहबी रुझान, एक मजहबी तअस्सुब जो है वो गलबा जो है वो पैदा हो रहा था। इसी तरह फिर ये कि आपकी इन्हीं गुफ्तगू के अंदर बाज़ चीज़ें जो है ना हमें लग रही थी कि आप यानी कंसेप्ट्स जो हैं बाज़ क्लियर नहीं हैं, यानी गुफ्तगू तो आप कर रहे हैं लेकिन कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है बाज़ चीज़ों के लिए। जैसे वलायत फ़क़ी के हवाले से जो है वो ये बयान करना कि वलायत फ़क़ी का नज़रिया जो है वो इन्होंने मजहबी रंग दिया है अपने तशय्यो को ग्लोबलाइज करने के लिए। तो खूब ये भी एक ताबीर इनकी इस बात की दलील थी कि असल नज़रिए वलायत फ़क़ी से यानी जिस तरीके से तशय्यो कायल है उस तरीके से आशनाई नहीं थी। इसी तरीके से मसलन आपका ये कहना कि अक्सरियत उलमा ए तशय्यो जो हैं वो वलायत फ़क़ी को नहीं मानते हैं, तो ये भी इस बात की अलामत थी कि आपके पास जो है इल्मी तौर पे जो एक गुफ्तगू हमारे दरमियान मौजूद है मकतब तशय्यो के अंदर, वो इन्फॉर्मेशन नाक़िस थी। ये बात दुरुस्त है, इसको हम मानते हैं, इसका इनकार नहीं है कि वलायत फ़क़ी के अंदर इख्तिलाफ जो है वो मौजूद है। लेकिन यहाँ पर हम जो है वो मकतब तशय्यो में दो मैदान पाए जाते हैं, एक है असल नज़रिया वलायत फ़क़ी और एक है उसका दायरा कार, उसका दायरा कार कितना है। असल नज़रिया वलायत फ़क़ी के अंदर जो है वो तो आपको मुखालफत में एक शाज किस्म के उलमा नज़र आएंगे कि जो बिल्कुल भी फ़कीह की विलायत के कायल ना हो। हाँ, दायरा कार के अंदर इख्तलाफ ज़रूर है कि फ़कीह को जो है वो अपनी विलायत का जो इजरा वो इम्प्लीमेंट करना है वो कौन कौन से दायरा कार के अंदर जो है वो होना चाहिए। खूब ये चीज़ें थी जिसके ऊपर हमने गुफ्तगू भी की, और मैं इस के अंदर मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने कबूल किया कि हम थोड़ा सा मैं अपने एतबार से बयान करूं, आप अपने एतबार से बयान करें। एक दूसरे को कबूल करना या मसलन लेकर आना वो तो जाहिर सी बात है दलाइल और एविडेंस के ऊपर हो, और इंसान के उस तफक्कुर के ऊपर जो है ना वो दलालत करता है। तो बहरहाल मैंने फिर अपनी उस जो हमने चंद दोस्तों के साथ मिल के आपकी गुफ्तगू के ऊपर रिएक्शन दिया और उस पे एक गुफ्तगू जो है वो रिकॉर्ड करवाई कि मेरा ख्याल में मुख्तसर तौर पे शायद आपने देखी है या मुकम्मल मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बहरहाल उसके अंदर हमने इन्हीं नुकात को फिर एड्रेस किया था कि जिसको मैंने अभी थोड़ा सा आपकी खिदमत में जो है वो बयान किया है। अभी भी जो आपने बाज़ दावे जो हैं वो दोहराए हैं उसके अंदर बहरहाल यही है, मैं बयान कर सकता हूँ कि विलायत फ़क़ी और वली फ़क़ी जो है हम गैबत के अंदर इस निज़ाम के कायल हैं। इमाम के बारे में जो आपने बयान किया ये बात दुरुस्त है, इमाम एक पैगंबर के बाद जो हिदायत का एक सिलसिला शुरू हुआ, और हम कायल हैं कि जिस तरीके से जो है वो हिदायत की ज़रूरत है इंसान को, खुदा ने नबुव्वत के ज़रिए हिदायत दी और फिर नबुव्वत जब ख़त्म होगी और ख़ातमुन नबिय्यीन जो हैं पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ऊपर जो है वो ये नबूवत ख़त्म हुई है, तो हिदायत का सिलसिला चाहिए था। तो हमारे नज़दीक जो है वो हिदायत का सिलसिला जो है वो इमामत की शक्ल में है। तो अब गैबत के अंदर बहरहाल ये एक मजहबी तशख़्ख़ुस के साथ मफ़ाहिम हैं, जैसा कि आपने ख़ुद अपनी गुफ्तगू में फ़रमाया कि इन सारी बहसों के अंदर तो जाएंगे नहीं, फिर तो ये एक मजहबी गुफ्तगू भी हो जाएगी और फिर जो है वो कोई नतीजा खेज़ भी नहीं होगी और कोई कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होगा। मैं फ़कत अपने दावे को दोहराते हुए फ़कत एक चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ जो आपकी गुफ्तगू में मौजूद था, वो ये कि हम गैबत के अंदर जो कि आया जो है वो मकतब तशय्यो जो है वो अपना कोई पॉलिटिकल सिस्टम रखता है या नहीं रखता, तो हमारे नज़दीक जो है वो रिवायात के अंदर शवाहिद मौजूद हैं और अक़ल से भी हम इस बात के ऊपर जो है वो दलील लेकर आते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो विलायत फ़क़ी का ही होता है। विलायत फ़क़ी से क्या मुराद है? विलायत फ़क़ी से मुराद हम ये लेते हैं कि एक माहिर जो इस्लाम के अंदर इज्तिहाद रखता हो, दीन के ऊपर महारत कामिल रखता हो,
ये है हक रखता है कि वो सियासत में आए और एक सियासी सिस्टम को लेकर आगे चले। चूँकि हम इस्लामी हुकूमत की बात कर रहे हैं, और इस्लामी हुकूमत के अंदर फाइनल अथॉरिटी जो है वो एक ऐसी शख्सियत को होनी चाहिए कि जो इस्लाम के अंदर, यानी मनाबे इस्लामी के अंदर कुरान है, सुन्नत है, रिवायात हैं, उनके अंदर जो है वो अपने महारत रखता हो, वो आकर अब ये हक रखता है कि वो इस इस्लामी हुकूमत के अंदर जो है वो अपना किरदार निभाए। इसको हम विलायत फ़कीह से जो है वो ताबीर करते हैं। अगर यही चीज़ जो है आप इस्लामी हुकूमत को अगर आप मकतब अहले सुन्नत के अंदर जाकर देखें, तो वो अफराद के जो इस्लामी हुकूमत के कायल हैं और उसके लिए जदोजहद करते हैं, तकरीबन वो भी इसी किस्म की ही बात करते हुए नज़र आते हैं कि इस्लामी हुकूमत के अंदर जो है वो जो फाइनल अथॉरिटी होनी चाहिए वो इस्लाम की हो। और ज़ाहिर सी बात है, अब इस्लाम तो कुरान और रिवायात की शक्ल में है, टेक्स की सूरत के अंदर है, तो उसको फिर मुआशरे के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के काबिल कौन बनाएगा? वही बना सकता है कि जो इनके ऊपर महारत रखता हो, जिसने अपनी उम्र जो है इसके अंदर लगाई हो। तो तकरीबन वही एक फ़कीह की ठीक है। हुकूमत ही बनती है। तो ये विलायत फ़कीह की हुकूमत का एक कंसेप्ट है। तो इसके अंदर क्या है, वो नाइब बनता है, चूंकि असल हुकूमत जो है इमाम ने करनी है। अब इमाम जो है वो पर्दा गैबत के अंदर हैं, बहरहाल वो एक अलग बहस है, उसकी अपने दलाइल मौजूद हैं। अब जब गैबत में हम मौजूद हैं, क्या हम बगैर पॉलिटिकल सिस्टम के रह सकते हैं? तो वहाँ पर हमारा नज़रिया ये है कि इमाम की नियाबत में, चूँकि इमाम ने अब फ़ुक़हा की तरफ रुजू दिया है। मतलब हमारे पास एक रिवायत मौजूद है, मन कान साइनन लिनफ्सिही मुखालिफन लिहवा, और इस तरह के चंद सिफ़ात गिनवाते हैं और कहते हैं कि ये उलमा अब आपके लिए जो हैं वो मर्जे हैं, आपने अपने तमाम उमूर के अंदर इनकी तरफ रुजू करना है, और उसमें हमारा जो है वो सियासी निज़ाम जो है वो भी इसके अंदर जो है वो शामिल है। बस इस एतबार से नाइब होने का जो कंसेप्ट है विलायत फ़कीह का, वो इस तरीके से है। इमाम, वो बात दुरुस्त है, हम विलायत फ़कीह का निज़ाम इमामत की गैबत की वजह से कायल हैं, तो लिहाजा हतमन वो नाइब ही बनेगा, चूँकि वो उसकी जगह पर अब उस फरीज़े को अंजाम दे रहा है, चूँकि वो ज़ाहिर जो है वो नहीं है। ये एक मतलब था कि जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। एक मतलब आपने यहाँ बयान किया है, मैं चाहूँगा कि इसका ऊपर भी जो है आप थोड़ा सा वजाहत ज़रूर कीजिएगा। अभी इस गुफ्तगू में भी आपने इसकी तरफ इशारा किया है कि विलायत फ़कीह जो है वो इमाम मेहदी अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ अगर तशरीफ़ लाएंगे, तो वो इस तरह नहीं है कि वो सुन्नी और देवबंदी के ऊपर चढ़ाई करेंगे। तो यानी हमारा भी ये नज़रिया नहीं है कि इमाम महदी अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ जो है वो तशरीफ़ लेकर आएंगे कि वो सारे सुन्नियों को जो है वो उनका कला कमा जो है वो कर देंगे, उनको ख़त्म करेंगे, या इस तरह की कोई ताबीर मौजूद हो। इस तरह की बात नहीं है। बात ये है कि अहले सुन्नत और मकतब तशय्यो के अंदर मुतवातिर रिवायात से ये बात साबित है कि इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ ने आना है आखिरी ज़माने में, जिसकी तरफ आपने एक फ़िलासफ़िकल टर्म के साथ जो है वो इशारा किया है, जो एंडिंग टाइम के हवाले से जो बात हो रही होती है, तो उसको महदवियत के अंदर जो है वो हम बयान करते हैं कि ये वक्त आएगा कि जिसमें इमाम जो हैं हमारे नज़दीक ज़हूर करेंगे, मकतब अहले सुन्नत के नज़दीक पैदा होंगे, और फिर वो हुकूमत को जो है वो कायम करेंगे, जुल्म और जोर से भरी हुई हुकूमत को अदल व इंसाफ से पुर कर देंगे, और इस्लाम अपनी पहली शक्ल के अंदर जो है वो वापस आ जाएगा। अब ये कत्ल गारत कला कमा करके नहीं आएगा। ये आप यूं कह लें कि तारीख आहिस्ता आहिस्ता इंसान को हकीकत के करीब करती जाएगी। जिस तरीके से अभी भी आप देख लें, जब इल्मी गुफ्तगू होती है, इल्मी डिबेट्स होती हैं, किताबें लिखी जाती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़े लिखे लोग मुतवज्जे होते हैं कौन हकीकत पर है, कौन हकीकत पर नहीं है, और जो मुनसिफ मिजाज होते हैं वो हतमन उस हक को कबूल करने की तरफ आ जाते हैं और हक को कबूल करते रहते हैं। तो अब यहाँ पर जो है वो हकीकत के यूं करीब होते जाएंगे, और आहिस्ता
آہستہ یہ زمینہ فراہم ہو رہا ہے، اور وہاں پر امام مہدی جب ظہور کریں گے یا آپ کے مطابق جو ہے اہل سنت کے مطابق پیدا ہوں گے اور حکومت قائم کریں گے، تو حقیقت اپنی پہلی رنگ کے اندر، اپنی پہلی شکل میں واپس آئے گی، جس طریقے سے اسلام صدر اسلام میں پیغمبر کے دور میں ایک خالص اسلام موجود تھا اور بغیر اختلاف کے تھا، وہ واپس آ جائے گا۔ لیکن اس میں اگر یہ تاثر آپ کی بات سے ہمیں یہ مل رہا ہے، یا آپ نے پہلے بھی جب گفتگو کی ہے کہ مثلاً ولایت فقیہ بھی چونکہ مہدویت کے نظریے پہ چل رہا ہے، تو انہوں نے اہل سنت کو حتماً مغلوب کر کے رکھنا ہے کسی بھی طریقے سے، یا ان کو ماریں گے یا ان کو جو بھی ہے، یا مہدویت میں مہدی جو ہے وہ یہ کام کریں گے، یہ ہمارا بالکل نظریہ نہیں ہے۔ بہرحال بہت ساری باتیں، میں چاہوں گا کہ زیادہ بات لمبی نہ ہو، لوگ زیادہ تھوڑی تھوڑی باتوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہمارا گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے، تاکہ زیادہ استفادہ جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی اور ہمارے آپس کے لیے بھی جو ہے یہ بہتر ہو۔ معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی جملہ کوئی ایسا ہو، میں نے اپنے احساسات کا اظہار کیا تھا، تو اس کی وضاحت آپ جو ہے وہ خود دیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، وہ ایک مجھے اجازت ہے کہ آپ کی وساطت کے بغیر جی کر جی لوں جی بات؟ بالکل، ہاں ہاں بالکل بالکل اجازت ہے۔ وہ جو ہے نا، دو باتیں ہیں، ایک تو وہ تو تعصب والی بات، تو وہ ہو سکتا ہے کہ محاورے کے استعمال کی وجہ سے وہ لگا ہو کہ اہل سنت کی نمائندگی کرتے ہوئے، لیکن دل بہرحال میرا یہی ہے کہ میں متعصب نہیں ہوں، اور یہ ہوں مطلب اپنے حلقہ احباب سے بھی پہچانا جاتا ہوں۔ تو خیر، وہ 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 بے احتیاطی ہوگی، مطلب وہ اس کی، مطلب اس کے غلط ہونے میں فرق نہیں پڑے گا میرے بے تعصب ہونے سے، لیکن اتنی بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اختلاف رہے، وہ جیسے کوئی رنجش نہ بنے نا، تو جی تعصب جی رنجش پیدا کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو امام مہدی کے بارے میں آپ نے فرمایا، تو میں نے جو بیچ میں عرض کیا تھا کہ وہ شیعوں میں اور سنیوں میں یہ والا تاثر نہیں ہے کہ وہ قم میں، وہ میں نے مثال اس لیے دی تھی، ہوں یا دیوبند میں بیٹھ کے قم پہ حملہ کر دیں، تو یہ نہیں، وہ تو ایسے ہی ایک مطلب خوش طبعی سے مثال دی تھی، میں نے شیعوں کے بارے میں کہیں نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے کہ وہ آ جی کے جی، میں نے بھی اسی لیے تذکرہ کیا تاکہ اس کی کلیئرفیکیشن ساتھ ساتھ ہوتی رہے، اس لیے میں تھوڑا سا بیچ میں بالکل بتاؤں۔ نہیں، ایسا نہیں۔ اور دوسرے جو وہ ہے کہ ولایت فقیہ کی جو آپ نے تعریف کی بہت مہارت سے، میرے خیال میں وہ نامکمل ہے۔ تو مطلب جیسے 10 میں سے 3 بیان کر دیں تو 3 صحیح ہیں جو 10 کا حصہ ہیں، لیکن پوری بات نہیں ہے۔ تو وہ پوری بات ہم رفتہ رفتہ رکھیں گے، کیونکہ آپ نے نیابت کے جو حقوق ہیں اور نائب کے جو اختیارات ہیں، اس میں خود اہل تشیع میں تذبذب پایا جاتا ہے۔ وہ میں کوٹ بھی کر سکتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ یہ لوکل ولایت ہے ایران کی حد تک، یا گلوبل ہے، کیونکہ نائب امام لوکیلٹی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ نیابت کی جو کلاسیکی شکلیں ہیں، یعنی ولایت حزبیہ جو ہے، وہ بھی مراجع جو ہیں وہ لوکل نہیں ہوتے، ایک تو کثرت سے ہوتے ہیں لیکن لوکل نہیں ہوتے۔ دوسرا یہ کہ مرجع ہونے سے، یعنی ولی امور حزبیہ کمتر ہے نائب امر سے، یعنی نیابت امر جو ہے وہ نیابت تعلیم سے بڑی ہے، اور اس میں کچھ حوالے بھی ہیں۔ تو یہ اہل ایران میں ایک تذبذب پایا جاتا ہے اس مسئلے پر بات کرتے ہوئے علماء میں، یعنی جیسے کوئی تھنک ٹینک ان سے بات کرے تو یہ تذبذب پایا جاتا ہے، اور دونوں طرح کی باتیں ایک ہی زبان سے نکلی ہوئی محفوظ بھی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ لوکل ہے، دوسرا یہ کہ یہ گلوبل ہے۔
यानी इमाम हम्म। इमाम उम्मत हैं, मुल जी जी। आलम हैं। तो नायब जो है वो उनकी इमामत के दायरे को सुकेड़ थोड़ी सकता है। हम्म। वो गोया मुझे आपकी ये बात मुकम्मल हो जाए तो मैं चाहूंगा कि अभी ही इसके ऊपर बात हो जाए, फिर अगली बात मैं चलाते हैं, मैं आपकी जब बात बस पूरी हो एक जाएगी। जी फिक्र कह दूं कि जी। जी अगर नायब इमाम है वली फकीह, यानी विलायत मुतलका का वारिस, और वो जो मजहर, तो वो लोकल नहीं हो सकता। वो कम अज कम अकीदे इमामत रखने वाली बैन अवी जमाअत पर हाकिम होगा। मतलब ये लाजिमा है उस नियाबत का। तो हम ये समझते हैं कि इसको छुपाया जा रहा है। हम जी से जी। मुराद, अब यहाँ हम से मुराद अहले सुन्नत हाँ। नहीं है, यहाँ हम से मुराद पूरा पॉलिटिकल शऊर है, जिसके हम्म। बहुत सारे नुमाइंदे दुनिया भर में हैं। जी जी। जी जी। तो दूसरी ये बात है कि इमाम, इन्होंने कुछ थोड़ी सी चालाकी भी लगती है। वो ये कि इमाम, जाहिर है कि वो नायब जाते इमाम का मिसल थोड़ी है। वो जो है मतलब ये जो हुज्जत और क्या नाम है इस्मत हैं, ये तो उमूरे जाती हैं ना इमाम के। तो ये नकले जात थोड़ी है, ये तो नकले मनसब है। तो उसमें उसका मासूम और हुज्जत ना होना कोई खास फर्क नहीं डालता। मतलब ये एकेडमिक सा फर्क है जी क्या। जी बिल्कुल। ये हम इन्हें हुज्जत उन मानों में नहीं मानते, जी जी। लेकिन जो दुनिया पर मुअस्सिरात इमाम को हैं वो इनमें भी हैं। जी जी। जो इनकी अथॉरिटी है वो इनकी भी है। यानी हम्म। नायब अथॉरिटी की मशीन होता है ना, मीडियम होता है। हम्म। हम्म। तो ये सब तो है, हम्म। लेकिन जैसे जो जिस बात को मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सी मतलब जराफत से कह रहा हूँ कि चालाकी लगती है, वो सुन्नी के जी जी। खिलाफ में करते हैं हम वो। मैं वजाहत करूंगा तो मालूम हो जाएगा। जी जी। वो ये है कि वो क्या नाम है, अब या वो क्या कहने जा रहा था मैं भी वो, हाँ हाँ हाँ, कि आईन में ये लिखा हुआ है, वो मजलिस है कोई माहिरीन की, हम्म। वो अज़्ल व नस्ब कर सकती है वली फकीह का, और ये मुशीर और वो मुशीर। तो अब आईन में लेकिन क्या उस मजलिस ने कभी दो वलीउल अम्र गुजर, एक गुजर चुके, एक हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, इनसे किसी भी मामले में ऐसी रूगर्दानी की है या इख्तिलाफ किया है जिस पर उन्हें अपनी राय वापस लेनी पड़ी हो? ये जी बस जी। इन दलाली पे। जी जी। जी कबला जाहिर साहब। अहमद अहमद जावेद साहब की बात अगर मुकम्मल हो गई है तो मैं बात करता हूँ। जी जी, अहमद आप जावेद साहब। भाई। जी जी। जी, बात पूरी हो गई उनकी। अब बिल्कुल। आप बात फरमाइए। जी ठीक है। मैं एक दो चीज़ें जो है वो लाजमी वजाहत करूँगा। पहली बात तो ये है कि मैं दोबारा जो है वो बात, चूँकि ये ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद भी हैं और दोबारा भी रिकॉर्ड पर आएंगी, तो इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ इसको, बात को, कि वो तासुब वाली जो बात चल रही थी ना, मसलन इसमें मैं एक शाहिद के तौर पे आपकी एक इबारत मज़ीद कोट करता हूँ कि जिससे हमें लगा था कि आप जो हैं लाशऊरी तौर पे ही, जैसे आप वजाहत कर रहे हैं कि और मैं आपकी बात को हुज्जत समझता हूँ, चूँकि जब बंदा, वो कहते हैं ना, मुसन्निफ ज़िंदा है, ख़ुद कह रहा है, तो उसके अंदर कोई दो राय जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपकी गुफ्तगू में जो एक तासुर पाया जाता था, उसके जुमलात जो है वो कोट कर रहा हूँ, वो ये कि हाँ, आप जुमला कोट कर दीजिए, मैं जी जी।
मसलन एक बात आपने इसके ऊपर बड़ा जोर दिया कि ये जो वहदत का नारा लगा रहे हैं और वहदत का कंसेप्ट पेश किया है, ये सुन्नी को शिया करने के लिए ये वहदत का नारा लगा रहे हैं और वहदत चल रही है। तो ये अब आप यूं कह लें कि नीयत खानी है एक किस्म की, यानी अमल जो है उसको शाहिद शायद इस तरीके का, अगर आप कोई एविडेंस कवी और मजबूत इस मौजू पे रखते हैं, बात करते हैं इसके ऊपर, तो वो तो अलग अलग अब बात आप हो जाएगी, इससे लेकिन ये आगे बात ना कीजिएगा, मतलब इसी नुक्ते पे जितना कहना चाहें कह दें, मुझे इस पे वजाहत करने दीजिएगा। जी आप जी अपनी ज़रूर बात ज़रूर। बताएं, साहब जी अपनी जी। बात मैं को। जी बिल्कुल, मैं भी अपने तासुरात आपकी गुफ्तगू से बयान करूं ताकि क्लैरिफिकेशन मिल जाए। मैं भी चाह रहा हूं कि आप अपनी बात को ज़रूर खोलें, चूंकि आपकी बातों के ऊपर रिएक्शन हमारी तशय्यो की तरफ से भी काफ़ी आया, तो ये गुफ्तगू यार जब ऐसा सुनेंगे तो कितना है बोला। आपकी तो आपकी क्लेरिफिकेशन से वो चीज़ें जो है ना वो वाज़े हो जाएंगी। तो मैं इसलिए वो चीज़ें जानबूझ के कोट कर रहा हूँ ताकि नहीं, बहुत चूंकि अच्छा। इस महफिल का एक मकसद जो है वो क्लेरिफिकेशन है कि जो मताले एक मसलन आपसे बयान हुए हैं उसको हम यहाँ पर जो है ना वो लेकर आए। तो एक वो चीज़ जो ये थी कि बहरहाल इसमें आपकी ये रिकॉर्डेड गुफ्तगू है, इसमें आपने जोर भी काफ़ी लगाया था, यानी इसके अंदर आपने जो मराजे के फतावा मौजूद हैं, वली फ़कीह का जो हुक्म मौजूद है उसको भी आपने ज़ीर सवाल लेकर गए कि मसलन ये कहने की बातें रह गई हैं, ईरान तो बस अब ये कह रहा है कि लगे रहो। तो ये ताबीर आपकी जो है ना बड़ी तफन्नुन रखती थी और आपने इस तरीके से जो है ना वो उसको लेकर आए। तो यहाँ ये वाली जुमलात सारे तकरीबन तासुब ही के ऊपर हाँ हाँ। जो भी देखेगा यानी वो तासुब ही इससे लेगा, मगर ये कि आपकी क्लेरिफिकेशन आ जाए जो कि इस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरी बात हम आते हैं, आपने जो विलायत फ़कीह के कंसेप्ट के हवाले से जो है इस वो पे बात जावेद की साहब है। से वो ले लें, जाहिर साहब भाई कबला। इसमें तो रहने इस दें, पे मैं इस पे जावेद साहब से तासुब मैं वो ले रहा हूँ, ये वजाहत तासुब करता हूँ, वाली। फिर तो विलायत अगर फकीह आप तो इल्मी मसला है ना, फिर तासुब जाहिर नहीं। आगे जाहिर तो साहब, आप तासुब। आपकी जी जी इजाजत हो जी तो जी जावेद साहब से जी जी, कि ले लें ले लें ले लें, यार जी बिल्कुल ले जावेद लें। साहब। जी जी कि जी। वो है, इसका एक पस मंजर है। जी जी। आप मतलब आप हम लोग एक दूसरे के बारे में मालूमात कम रखते हैं ना, तो मैं भाई वो अ, यौम विलादत अली पे इमाम बाड़ों में जाता रहा हूँ जिस हम्म नौजवानी से। मेरी एक दादी शिया हैं, थी, अब हम्म मरहूम हो गई। उनकी औलाद में शिया सुन्नी मिक्स हैं। तो ये सब गंदगियां, अल्लाह का शुक्र है कि घर ही से जैसे साफ हो चुकी थी। ये इसका कुछ मुहर्रिक था। जो जुमले आप हम्म कोट कर रहे हैं मैं भी सुनता, तो मैं हम्म भी इसको मुतासिबाना कहता। ये नहीं हम्म कह रहा कि आपको गलत फहमी हुई है, लेकिन सही। चाह रहा हूँ कि वो जुमले, उन जुमलों की तहरीक पर भी गौर किया जाए, सबब पर। तो जी वो जी जैसे एक आदमी झुंझला कर और बहुत ज्यादा गुस्से में बात कर रहा है। गुस्से और ताज्जुब में फर्क होता है। तो मुझे गजा वालों में हम्मास के इक़दाम पर गुस्सा था। वो जो बच्चों की अमवात हुई हैं उस पे गुस्सा था। वो हसन नसरुल्लाह वगैरह जो शहीद हुए हैं उन सब पे गुस्सा था, क्योंकि ये लोग मेरे लिए मिसाली लोग थे। सब पे गुस्सा था। तो इसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा मेरे जज्बात की रूह से ईरान पे जाती थी। हम्म और ईरान के बारे में मेरे ठंडे दिल से गैर मुतासिबाना तासुरात भी हम्म यही है कि वहदत का नारा एक आड़ है। वो मैं अभी जी आपसे बात करूंगा, लेकिन जी वो जी एकेडमिक बात होगी। तो जी उस जी बिल्कुल। में कुछ बातें की, और मैं आज भी बच्चों बीस जी जी, हजार मैं बिल्कुल आपने दोबारा जो है वो ही कहा, मैं इसके ऊपर आपकी जो है ना वो दलील ज़रूर चाहूँगा बाद में। मैं आपकी जो पहले बात की है उसको उसको मज़ीद थोड़ी सी वजाहत कर दूं की कि तो आप अल्लामा हिल्ली की शरह के साथ मैंने शियों को पढ़ाई है। जी जी जी, वो मुश्किल नहीं है कि आप, चूंकि आप दोबारा कह रहे हैं कि मसलन ईरान ने वहादत की आड़ ली हुई है, तो अच्छा ये एक कबला, बहुत इससे हम बड़ा आगे जुमला बात है करेंगे ना। जिसके ऊपर उसी लेवल लफ्ज का मैं ओन एविडेंस भी करता हूँ, चाहिए। जी जी ये लफ्ज मैं ओन करता हूँ, लेकिन अब ये लफ्ज ऐसा है
کہ जैसे आप वॉशिंगटन पोस्ट में पढ़ रहे हैं। अच्छा जी। मौलवी साहब, वाजे मैं नहीं नहीं, भैया ये ने। ये कहने कबला। वाला सुन्नी शिया नहीं है। ये लफ्ज कहने वाला एक पॉलिटिकल मुबस्सिर है, जो तहजीबों के बनने बिगड़ने के अमल पे नजर रखता है, और जो अकायद के नफ्सियाती और तहजीबी मज़ाहिर को अहमियत देता है, ये जी उसका है। और ये जी जी। आपका तो सुन्नियों का भी एक आध बता दूं, मतलब ये वो वाला मामला नहीं। नहीं देखें, नकले कौल तो बहुत सारे किए जा सकते हैं। मेरे पास भी पूरी दुनिया के अहले सुन्नत के माहिरीन के अक़वाल मौजूद हैं कि जो वहदत को आड़ नहीं समझते, बल्कि ये समझते हैं कि वहदत की फ़िक्र जो ईरान ने विलायत फ़क़ीह के साए के अंदर आगे लेकर चले हैं, यही बेहतरी की तरफ लेकर आए। नकले कौल तो दलील नहीं बनेगा ना, उसमें यह है कि शाहिद के तौर पर लेकर आने की ज़रूरत होती है कि मसलन ये चीज़ें आप देखें कि ये शाहिद बन रही हैं कि यहाँ पर देखें ये सुन्नियों को शिया कर रहे हैं, इस वजह से इबादत का नारा लगा रहे हैं, यहाँ पर मसलन जो है वो शिया बना रहे हैं उसको। तो ये दावा जितना बड़ा होगा, थोड़ा बहुत तो शाहिद होने चाहिए ना उसके ऊपर। है। नकले कौल तो जाहिर सी बात है वो तो करनी। अपने बुढ़ापे को एडवांटेज जो मैंने डराया था ना, वो आप ले रहा हूँ, मतलब आपकी बात को कतः करते हुए। जी जी जनाब, मैं बिल्कुल एक सोशोलॉजिकल वो है। अब इसमें मजहबियत या सुन्नियत और तशय्युह एक तरफ है। इनकलाब ईरान ने जब 80 के अवाइल में अपने कदम जमा लिए, मतलब इराक वगैरह का किस्सा निमट गया, तो एक तो ये हुआ कि अहले तशय्युह ने कम अज कम हिंदुस्तान पाकिस्तान की हद तक, जो मुशाहिदे की बात कर रहा हूँ, वो तक़िये को मुआशरती ज़रूरत के दर्जे में भी छोड़ दिया। ये अब इसके शवाहिद इतने कसीर हैं कि वो कोई भी ढूंढ सकता है। और इससे जो है वो जाहिर है कि वो तवाज़ुन बिगड़ गया, जो तवाज़ुन अहले तशय्युह ने हिंद इस्लामी सकाफत में कायम किया था। मतलब हमारी जो मुआशरती बुनत है, वो कम अज कम जिस इलाके का मैं हूँ, वो बुनत शियों की बनाई हुई थी। ठीक है ना? तो वो तहस नहस हो गई। दूसरी, अब मैं एक, इमाम खुमैनी साहब ने फरमाया था कि शिया और सुन्नी जसद इस्लाम की दो आंखें हैं। ये कोट सही कर रहा हूं मैं? जी जी जी, इस तरह के अकवाल हैं और भी। हाँ, मतलब ये एक जमाने में स्लोगन की तरह हुआ था, 80, 81, 82 में। तो बादी वो ये स्लोगन बहुत ज्यादा बुलंद आवाजी के साथ जो है वो सामने लाया गया। लेकिन जरा गौर कीजिए, मतलब कि वहदत मुस्लिमीन की इस तहरीक का ज्यादा शोर उन्हीं खित्तों में सुनाई दिया और ताहाल दे रहा है जहां अहले तशय्युह अक़लियत में है। और खुद ईरान में जो होता आ रहा है, उससे इस बयानिए की तायीद, काफी तायीद नहीं होती। फिर मौजूदा सूरत हाल जिसमें, मतलब ये आप कह सकते हैं कि भाई 80 में आप नहीं थे, लेकिन ये कि 2025 है, विलायत फकीह के एलानिया उलमाओ जाकिरीन की जो इख्तिलाफी उमूर पर तहरीरें और तकरीरें हैं, जो ईरान में भी छप रही हैं और ईरान के बाहर भी। लेकिन चलो, ईरान में अंदाज शुरू से इल्मी रहा है, मतलब उनके इख्तिलाफी उमूर में। लेकिन जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ वो वाज़ेह हो जाएगा कि इनकी तहरीरें और तकरीरें ऐसी हैं 2024 में भी, जो खुद तारीख तशय्युह में बदतरीन तबर्रेबाजी का नमूना है। तारीख तशय्युह में नहीं हुआ। इस मामले में वहदत उम्मत के दाई जो ममलकत ईरान है, उसका कोई मुअस्सिर किरदार अब तक सामने नहीं आया। फतावा बहुत हैं, फतावा तो हर जी जी तरफ, जैसे सिस्तानी साहब या इनके वालिद जो जी
या उनसे भी पहले मोहसिनुल हकीम साहब, उन्होंने हम्म, भी वहदत उम्मत का मिशन लिया था और जी इराक जी में उसको कायम करके दिखा दिया। जी जी। आप समझे ना, अ, इराक इराक में। मैं कुछ वजाहत पेश करूं? नहीं, एक बात अपनी मैं पूरी कर लूं, ताकि बस जरा सा जी जी थोड़ा एक ही बात नुक्ता है। तो कोई मुअस्सिर किरदार सामने नहीं आया, किसी की जबान बंद नहीं की गई, किसी को दायरे मिल्लत से खारिज नहीं किया गया। तो किया गया है जो मरजइयत और विलायत के मुखालिफ हैं, उनके लिए तो पूरी मिशनरी काम कर रही है, यानी अल्लाह यारी ऐसे लोगों के लिए। तो जितनी हसासियत हसन अल्लाह यारी के लिए है, उतनी हसासियत शहरयार रजा आबिदी के लिए क्यों नहीं है? तो गुलात हैं, कहते हैं कि गुलात हैं। मैंने गुलात की हज लिखी तो उनकी तायीद में वहदत मुस्लिमीन के रहनुमा आए हैं। ये तो मेरे साथ वो गुलात की हज मैंने लिखी थी, और वो कहें तो सुना भी दूंगा यहाँ। तो खैर, तो अब सूरत हाल ये है कि अवामी जी जी तशय्युर में, इसको मैं कह जी रहा जी था, सोशोलॉजिकल जी जी। मैं एनालिसिस। इसको मैं अर्ज करता हूँ कि जो आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं इसकी मैं थोड़ी सी वजाहत बयान कर देता हूँ। मेरे ख्याल में काफ़ी आपने एविडेंस बयान किए हैं, मेरे ख्याल में थोड़ी वजाहत भाई कर दूँ, एक रहती है बात। एविडेंस तो और जी सुन लें, बस एक जी एविडेंस जी है, उसके बाद जी ये जी जी मेरी जी तरफ से किस्सा खत्म हो जाए, ताकि मेरा दिल तो हल्का हो ना, मेरी भड़ास निकल जाए। तो अवामी तशय्यो अपने मराजे और वली अम्र वगैरह के अक़वाल और फतावा और फरामीन को मबनी पर मसलहत समझने के आदी हो गए हैं। कैसे ही बयां करने तो बात इसमें जरा फितनों से बचत रहती है, और उसे मुकम्मल तौर पे नजरअंदाज किया हुआ है। तो अमलन, तो अब मैं अपना वाक़या बता, मजलिस वहदत मुस्लिमीन के कई कायदीन, जिनका नाम मैं इनके रद्द अमल की जो खौफनाक सतह है वो देखते हुए नहीं लेना चाहता, लेकिन ये कि उनकी दो रूई मेरे मुशाहिदे में है, मेरे तजर्बे में है, मैंने भुगती हुई है, कि कायदीन मजलिस तो खड़े हो के इत्तेहाद उम्मत का दर्स दे रहे हैं, और उनके मुसाहिबीन, उनके मुकर्रबीन, वो मुकद्दसात अहले सुन्नत पर खुले आम गलीज तरीन तानो तशरी में मारूफ हैं। यानी कि सिर्फ ये नहीं है कि हमने दरियाफ्त किया है, वो जी जी मारूफ है। तो हाँ, चले। जी जी अब जी जी मेरा जाहिर साहब। हो गया। देखिए, बहरहाल बुजुर्गवार शख्सियत हैं आप, और जैसा आपने बयान भी बुढ़ापे के जो है वो आप एडवांटेज भी ले रहे हैं, और हम भी इसके जो है वो मुखालिफ आप नहीं है मत इंशाल्लाह के। बुढ़ापे का एडवांटेज नहीं, इस्लाह कीजिए हमारी, जी 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 जी। मैं वही हमारी। अर्ज कर रहा हूँ, मसलन आप अपने अदीबाना अंदाज में थोड़ी सी ताबीरें वाकई यूज़ करते हैं कि जिसकी वजह से शायद आपको महसूस ना हो रहा हो कि इसमें अगले बंदे का मसलन क्या रिएक्शन हो सकता है या कितना उसको बुरा लगेगा। आप चूंकि बाज़ अदीबाना अंदाज में समझ रहे होते हैं कि ये वो कलाम का हिस्सा है, लेकिन उर्फ़ आम में शायद उसको जो है वो एक तौहीन के पहलू में शायद जो है वो ले सकते हैं। बहरहाल ये एक बात ताबीर, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये अदीबाना तरीका तो चलें ठीक है, लेकिन बहरहाल चूंकि जो मोतक़िद होते हैं अफराद, तो वो इस किस्म की ताबीरों को ज़ाहिर सी बात है उसको तौहीन और इसके ऊपर हमल करते हैं। तो आप जैसी शख्सियत से जो है वो हम चाहेंगे कि वो अगर थोड़ा सा अगर इसके ऊपर भी आप कंट्रोल करते रहें गुफ्तगू में, तो नहीं, हमारी चूंकि इल्मी गुफ्तगू हो रही है, इंशाल्लाह मैं अगर लाहौर आया तो वहाँ हम ऑफ रिकॉर्ड जो है भड़ास आप मेरे ऊपर निकाल लीजिएगा। तो तो ये चूंकि आगे नश्र होगी तो उसमें ज़ाहिर सी बात है ये एक एडिट इल्मी गुफ्तगू हमारा जाए तो एक ज़बरदस्त है उसमें।
देखें, हाँ, आपने अभी वहदत के हवाले से भी काफ़ी तफसीली गुफ्तगू फरमा दी है, और उससे पहले वाली जो गुफ्तगू है उसके ऊपर भी वजाहत मैं देना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कुछ मिनट आपके लूँ। मैं यही वहदत से ही आगाज़ करता हूँ, इसकी वजाहत करूँगा, फिर जो नियाबत के हवाले से आपने पहले जो बात की थी उसकी भी मैं वजाहत कर दूँ, ताकि फिर हमारी बात आगे बढ़े। वहादत के हवाले से आप बयान ये कर रहे हैं कि इनकलाब इस्लामी के बाद जो है वो तकिया जो है वो तकरीबन छोड़ दिया गया है। आप जितनी उम्र तो नहीं है, लेकिन बहरहाल हम ख़ुद चूँकि मकतब तशय्यो के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुख्तलिफ फिर माहौल भी हमने देखा, पाकिस्तान के अंदर भी रहे, मदारिस में भी, और फिर ईरान के अंदर भी, इराक़ के अंदर भी। यहाँ उलमा के साथ उठना बैठना भी है, आवाम के साथ सरोकार भी है, फिर अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। मैं मसलन 2001 से दीनी तालीम में मसरूफ़ हूँ, और 2024 है, मेरी आधी ज़िंदगी जो है वो दीनी तालीम पढ़ते हुए गुजर गई है। यानी खुद एक हद तक जो है आप कह सकते हैं कि मैं बिलाखिर एक ज़िम्मेदारी रखता हूँ इस मुआशरे की निस्बत जो है। तो वहादत के लिए मेरे लेक्चर्स भी मौजूद हैं, दिल से काम कर रहे हैं। जो आप ये गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि इनकलाब के बाद गोया के तकिया जो है वो ख़त्म हो गया है, और इसमें शायद विलायत फ़कीह की तरफ आप उसको ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये आपकी तहलील जो है वो नाक़िस, मैं गलत तो चूँकि आप एक बड़ी शख्सियत है, मैं नहीं ताबीर इस्तेमाल करूँगा, नाक़िस ज़रूर कह सकता हूँ कि ये नाक़िस है, चूँकि वहदत के ऊपर और ये जो गाली गलोच के ऊपर जितना काम इनकलाब इस्लामी के बाद हुआ है कि ये ना हो, जो इक़दामात हुए हैं इससे पहले आपको नज़र नहीं आएंगे। उसकी बहुत सारी मिसालें जो हैं मैं भी दे सकता हूँ, आपने बाज़ मिसालें दी, मसलन आप जो है वो बाज़ नाम आपने लिए। आप देखें कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक जाकिर ने जो है वो मुक़द्दसात अहले सुन्नत की इस्लामाबाद में तौहीन की है। अहले सुन्नत से पहले अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफ़ी क़द्दसल्लाहु नफ़्सहु ज़किया ने जो है वो इक़दाम किया और उसके ख़िलाफ़ पर्चा कटवाया, और फिर वो यहाँ मुल्क से बाहर भाग गया, और वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो मौजूद नहीं है। अब आप देख लें, वो शेख मोहसिन अली नजफ़ी साहब ने अहले सुन्नत से पहले जो है पर्चा कटवाया था उसके ऊपर, और बाकायदा वो कॉन्फ्रेंस जो है वो रिकॉर्डेड भी है, कि जिसके अंदर ये एहतजाज भी रिकॉर्ड हुआ था कि ये काम गलत हुआ है और हम ये नहीं होने देंगे, और तमाम ज़ाकिरीन को बुला के हिदायत भी जो हैं वो ज़ाहिर उसमें की गई थी कि ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हैं, कोई भी ऑफ द रिकॉर्ड ये चीज़ मैं बयान नहीं कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि अगर ईरान जो है या विलायत फ़क़ीह इसकी पुश्तपनाही कर रहा होता, तो फिर वो शख्स भागने के बाद ईरान में पनाह गुज़ीन होता, लेकिन हमें वो ईरान के अंदर नज़र ही नहीं आता है, वो यूरोप के अंदर जाके बैठ जाता है। हत्ता वो शख्स अब क्या है, जब ईरान के अंदर ज़ियारत के लिए आता है तो उसको यहाँ पर जिम्मेदार अफराद तकरीर करने नहीं देते। उसकी ख्वाहिश होती है छुप छुपा के वो यहाँ तकरीरें करके जाता है, लेकिन वो खुले आम जो है यहाँ ईरान के अंदर तकरीर नहीं कर पाता। एक दफ़ा उसने तकरीर की थी, उसके बाद रिएक्शन आया हमारे ज़िम्मेदार उलमा की तरफ से कि ऐसे शख्स को हम खुले आम यहाँ पर तकरीर नहीं करने देंगे, और वो नहीं हुई। और अब वो अगर आता भी है तो जल्दी जल्दी ज़ियारत करके यहाँ से जो है वो चला जाता है, या मसलन किसी घर के अंदर बैठ के तकरीर कर ली जाती है, उसको रिकॉर्ड करके नशर कर दिया जाता है कि मैं ईरान में तकरीर करके आया हूँ। तो जिनकी इन्फॉर्मेशन नाकिस होती है वो समझते हैं हाँ ये ईरान के अंदर इस तरीके से हो, उनको ये नहीं पता है कि इन्होंने कहाँ बैठ कर ये काम किया है, और फिर रिकॉर्ड तो कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, वो चीज़ जो है वो पाई जाती है। इसी तरीके से आप जो है वो देख लें, इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो ईरान ने जो है वो उठाया था, रहबर मुअज़्ज़म ने एक बहुत ही खूबसूरत ताबीर इस्तेमाल की थी, और आज आप शिया जो भी जवान देख लें वो ये ताबीर इस्तेमाल करता हुआ नज़र आता है। उसमें ये ताबीर इस्तेमाल की थी कि हमें MI6 का शिया और CIA का सुन्नी नहीं चाहिए है, ये इस्लाम के ख़तरनाक तरीन लोग हैं। यानी तशय्यो के जो
क्या कह लें आप, मुक़द्दसात की तौहीन करे और फिर वहदत के ख़िलाफ़ काम करे, मुसलमानों को आपस में लड़ाने की जो है वो काविशें करे। रहबर मुअज़्ज़म ने ये अलल ऐलान, अभी भी आप अगर सर्च करें तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी कि उन्होंने ये इस्तिलाह मुतारफ़ करवाई है कि जो भी मुक़द्दसात अहले सुन्नत की तौहीन करे और जो भी तफ़रक़ाबाज़ी जो है वो करे और जो भी मुसलमानों को आपस में लड़ाने के इक़दामात करे, वो शीओं के अंदर MI6 की तशय्यो शुमार होगी, वो खालिस तशय्यो नहीं है। और इसी तरीके से अहले सुन्नत जो ये काम करते हैं, और उसको CIA का मेरा ख्याल में उन्होंने जो है वो इशारा किया था। तो ये चीज़ एक मतलब है। दूसरा मैंने हवाला आपको दे दिया। एक और जो है आप, एक और जो मतलब मैं बयान करता हूँ कि जो आपकी तहलील को नाक़िस साबित करता है वो ये कि इस वक्त शिराजी ग्रुप जो है, आप उसके बारे में स्टडी करके देखें। इस वक्त शिगरी साहब जो हैं इसके बारे में मालूमात रखते भी हैं हम्म। कि ईरान ने कितनी ज़्यादा पाबंदियां ईरान के अंदर इनके ऊपर लगाई हुई हैं। ये आप शिगरी भाई से ही जो है वो जान लीजिएगा या ख़ुद थोड़ा सर्च कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि शिराजी ग्रुप जो है वो इस वक्त मनफूर है, और इसको मनफूर जो बनाया है वो विलायत फ़क़ी के निज़ाम ने। चूँकि ये अपने TV चैनल्स के ज़रिए, अपनी जो है वो सोशल मीडिया पेजेस के ज़रिए जो है फ़कत उन्हीं मसलों को हवा देता है कि जो वहदत को पारा पारा करते हैं, जो तनाज़ा झगड़ा जो है वो लड़ाइयाँ करने वाली बात करते हैं। तो यहाँ पर बाकायदा तौर पर उनको खुले आम किसी किस्म की एक्टिविटी करने की इजाज़त जो है वो नहीं है। और आज ये शिराजी ग्रुप सबसे बड़ा तशय्यो के अंदर मुखालिफ विलायत फ़क़ी है। एक और हमारे सितम ज़रीफ़ी ये देखने को मिलती है कि मसलन आप जैसे आप बयान कर रहे हैं कि मसलन जो है वो विलायत फ़क़ी जो है वो तकिया उसने ख़त्म कर दिया और तबर्रा हो रहा है, और ये सारा काम उसके ज़िम्मे लगा रहे हैं। और शिराजी ग्रुप्स जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इस विलायत फ़क़ी के निज़ाम को इस वजह से जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है, अपनी तहरीर के साथ, अपनी तकरीर के साथ, अपनी तहरीक के साथ, सारी चीज़ों के साथ। किस वजह से? चूँकि ये वो खुले आम जो है आप यूं कह लें कि उनको ऐसी बातें नहीं करने देता कि जो वहदत को पारा पारा करे और जो लड़ाई झगड़ा जो है वो करने लगे उसमें आके। तो ये चीज़ मौजूद है। दूसरी बात ये है कि एक आपकी गुफ्तगू में कुछ ऐसा भी मुझे लग रहा है कि देखें, ये तो बात एक वाज़े हकीकत है, कोई इसका इनकार जो है वो नहीं कर सकता कि एक सुन्नी जो है वो मौजूद है स्कूल ऑफ थॉट, और एक शिया है। इन्होंने बिलाखर अपनी गुफ्तगू करनी है। इल्मी गुफ्तगू करना जो है वो वहदत के मुनाफी नहीं आप उसको शुमार कर सकते कि आप जो है वो एक एक मकतब शिया की तरफ से वो अपने मुस्तनदात के साथ, बग़ैर तौहीन किए, बग़ैर अलकाब बिगाड़े हुए, बग़ैर जो है वो लड़ाई झगड़े की बातें करते हुए, वो अपने जो है वो रेफरेंसेस के साथ जो है वो गुफ्तगू करे कि मेरे नज़दीक जो है सदर इस्लाम से अब तक जो मुश्किलात खड़ी हुई हैं उसके असबाब ये हैं, उसकी वजह ये है, और किताबों से रेफरेंस दे और मुस्तनद हों ताकि सुनने वाला, देखने वाला वो फैसला कर सके, ताकि हकीकत तक पहुँचे। चूँकि हकीकत तक पहुँचना हर इंसान की जो है वो ज़रूरत है उसमें। तो आप अगर ये कहते हैं कि मसलन हम, मुझे नज़र आ रहा है कि शिया जो है वो अपने अफकार को अलल ऐलान जो है वो बयान कर रहे हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया और इन चीज़ों के ज़रिए से, तो अगर तो वो जो है मुक़द्दसात की तौहीन किए बगैर कर रहे हैं तो वो वहदत के मुनाफी नहीं है, वो तो बल्कि वहदत के ही झैल में आता है कि प्यार मोहब्बत से बैठ के बातें सोशल मीडिया के ऊपर करें, जो भी करें। हाँ, जो झगड़े वाली बात है उसके अंदर जो है वो अब आपने एक शख्स का नाम लिया कि उसको क्यों नहीं करता, खूब वो यूरोप में बैठा हुआ क्या करे, ईरान वहाँ पे वली फ़की क्या करे वहाँ, उसको वहाँ से उठा के जो है वो ईरान की जेलों में ला के बंद कर दे? नहीं है। अगर ईरान जो है वो सपोर्ट कर रहा होता तो वो ईरान के अंदर इस वक्त मौजूद रहकर वो ये काम कर सकता था, और ईरान फिर वहाँ इकदाम ना करे तो आप ये वाली जो है वो बात कर सकते थे। खूब ये वाली किबला वो आपकी जो है वो वहदत। हम्म, किबला जाहिर जी साहब, जी। मेरे ख्याल से जावेद साहब ने जिनका नाम लेके कहा था, उन्होंने ये कहा था कि यहाँ शिया अवाम में उसके लिए और दूसरे के लिए हसासियत यकसा क्यों नहीं है। यानी अल्लाह यारी के लिए तो यकसा बड़ी है, हसासियत। यकसा है आप, हाँ यकसा है। मैं आपको वो बताता शायद हूँ, ये जावेद नहीं साहब ये जानते कह रहे ना। थे, जी जी, ईरान का नहीं कह रहे हसासियत। थे वो।
ऐसे ही हसासियत एक यक्स राइटर हाँ। मूव है कि खवारिज को अपने दलाइल देने की ईरान में इजाजत है। जी जी। आप इल्मी तौर पे आए, गुफ्तगू कर सकते हैं, अहले सुन्नत मौजूद हैं यहाँ पे, हत्ता बाज तकफीरी अनासिर भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो आके इल्मी गुफ्तगू तो करते हैं। अरे राय की वैसी आजादी है। देखें ये एक ये मेरे ख्याल से अहमद जावेद बात साहब, दूसरी ये एक तरफ अलग जाएगी। बहस हो जाएगी। ये बात ये दूसरी एक एक तरफ अलग बहस जाएगी हो फिर। जाएगी कि इजहार आज़ादी कितनी है देखो, ये कितनी बात नहीं है, नहीं, अभी जो है वहां वो। पे मजहबी हुकूमत है। जी जी मतलब ये कि अफगानिस्तान पे भी अप्लाई कीजिए, ये नहीं। अब ये जी मैं जी कह रहा हूँ कि अब इससे हम निकल के बात कर रहे हैं। जी हम जी। कह रहे हैं कि उसका वीजा मंसूख किया। ये लोग जो नहीं इसका यूरोप में रहते हैं, ये जियारतों पे कैसे आते हैं? नहीं, इसका आप वीज़ा मंसूख कर, यानी अगर वीज़ा मंसूख नहीं करते हैं तो आप इसको दलील बना रहे हैं कि ईरान सपोर्ट कर रहा है उनको। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं। और तो मुझे जाहिर। बिल्कुल ये शुबा नहीं है कि ईरान वहदत इस्लामी का नारा ये जो है ये ढोंग है। बिल्कुल जी। शुबा नहीं है। ये सब चलें, बातें वो तो आपका नजरिया है ना। देखें अहमद जावेद साहब, आप जो है वो अपनी गुफ्तगू को जो है ना वो तकरार उसमें कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपने अपने एविडेंस दिए, मैं अपने दे रहा हूँ, ये अब नाजरीन के ऊपर ही ठीक है, छोड़ते ठीक है। हैं कि नहीं, वो मैं, किस तरीके से उसको लेकर आप आएगा, अपनी ये बात बहस पूरी जो है करें। वो हल नहीं हो पाएगी। जी जी। जाहिर सी बात है, फिर बात से बात निकलेगी तो ये कभी इख्तिताम नहीं पहुंच। आपने अपने एविडेंस पेश किए कि ईरान जो है वो ये वाला काम कर रहा है, मैंने अपने एविडेंस पेश किए हैं कि ईरान जो है वो वहदत इस्लामी पर सच्चा है, ये ढोंग नहीं है। वो अपनी ईमानदारी के साथ ये काम जो है वो अंजाम दे रहा है। अब ये एक आप कह लें मजहबी जज्बातियत है कि आप जो है वो कहें कि फलाने फलाने को जो है वो बंद कर दें, वीज़ा मनसूख कर दें, फलाना कर दें ना, ये हुकूमती लेवलों के ऊपर जो है वो बाज़ पॉलिसीज़ होती हैं, उसके अंदर बारह। अब वो नहीं होता कि एक एक छोटे छोटे बच्चे को या छोटा इंसान के जिसकी इतनी वैल्यू नहीं है आप उनके वीज़े मनसूख जो है वो करते रहें। अल्लाह यारी जो है आप देखें उसके वो मुकद्दसात अहले सुन्नत की तौहीन करता है, आपको कोई जिम्मेदार बंदा जो है उसको ऑन करता हुआ नजर नहीं आएगा, और ये दिली तौर पे ऑन नहीं करते हैं। आपको ना इराक का जो है जिम्मेदार प्लेटफॉर्म ऑन करता हुआ नजर आएगा, ना ईरान का जिम्मेदार प्लेटफॉर्म ऑन करता हुआ नजर आएगा, ना पाकिस्तान के जिम्मेदार उलमा जो है वो ऑन करते हुए नजर आएंगे। खूब वो उसने अपने आप को जो है सोशल मीडिया पे मारूफ किया, उसी लेवल का जो है वो रिएक्शन आ रहा है। तो लिहाजा बहरहाल ये सारी इसी तरह शिराजी ग्रुप के हवाले से मैंने आपको बयान किया है कि पाबंदी है बाकायदा, वो नहीं कर सकते खुल के काम ईरान के अंदर। तो काफ़ी दफ़ा उनको जो है वो मुतालबा किया जाता है, ये बहुत सारे आप कभी इंटरनेट पे सर्च करके देख लें। शिगरी भाई तो चूंकि ईरान में आते जाते रहते हैं, वो इन चीज़ों को जानते भी हैं, वो बता सकते हैं कि वो कितने नाला हैं इस वक्त ईरान के ऊपर। एक बहुत बड़ी तहरीक है ये कि जो इस वक्त विलायत फ़कीह के ख़िलाफ़ फ़कत इसलिए काम कर रही है कि उनको इस तरह खुले आम जो है वो इजाज़त नहीं मिलती है, उनको सपोर्ट नहीं किया जाता है। वो बल्कि जो है वो ईरान को ये कहते हैं कि ये वहदत का जो नज़रिया है, आपने तो कहा ना कि वहदत एक ढोंग है, और ये शिया को सुन्नी को शिया करने के लिए है, और इस तरफ से भी ये वाले ही फ़िक्र जो आप बयान कर रहे हैं तशय्यो के अंदर बाज़ जो मुखालिफिन है विलायत फ़क़ीह हैं वो कहते हैं कि वहदत का नज़रिया शिया को सुन्नी बनाने के लिए है। यानी ये वहदत का नज़रिया इसलिए बनाया गया है ताकि तशय्यो के अकायद को ख़त्म कर दिया जाए। ये आवाज़ भी बहुत ऊंची है इस वक्त, अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में देखें, और शिगरी भाई उनके बाज़ अफराद को जानते भी हैं इस तरीके से। तो बहरहाल ये एक वहदत से हम थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। आपने कहा कि जहाँ पे अकलियत है वहाँ पर वहदत की ज़्यादा बात होती है। आपने खुद अपनी गुफ्तगू में फरमाया है कि आयतुल्लाह सिस्तानी हाफिज़हुल्लाह ने जो है वो इतना बड़ा बयान दिया था कि आज वो हमारे लिए मशअल राह है। शिया अक्सरियत में है वहाँ पर, अक्सरियत में पावर में होने के बावजूद वहाँ पर आयतुल्लाह सिस्तानी जो हैं वो ये जुमला अदा करते हुए नज़र आते हैं कि अहले सुन्नत जो हैं वो हमारी जान की तरह हैं हमारे, और इस तरीके से उन्होंने ये बयान किया था। बस ये अकलियत वाली बात भी जो आपने की है वो हकीकत के मुताबिक जो है वो हमें नहीं लगती है। बहरहाल मैंने अपने दलाल, आपने दलाल पेश कर दिए, हम इस बात को जो है वो ख़त्म करते हैं। आपने एक विलायत फ़कीह के हवाले से जो बयान किया था, मैं फ़कत चंद मिनट में उसकी वजाहत बयान करता हूँ, फिर देखते हैं कि प्रोग्राम को मज़ीद आगे किस तरह लेकर चलना है। आपने ये बयान किया था विलायत फ़कीह के हवाले से उमूर हिस्बिया व मुतलक़ा। तो मुझे आपकी इस गुफ्तगू से भी इस बात का दोबारा ये एहसास हो रहा है कि आपने शायद विलायत फ़कीह के नज़रिए को।
जो है वो असली रिसोर्सेज से जो है वो नहीं पढ़ा, अपने मुशाहदात के नतीजे में या बाज़ दूसरे अफराद से सुनी सुनाई बातों के ऊपर एक राय का जो है वो इजहार या कायम कर लिया उसमें। देखें, विलायत फ़कीह मुतलका और मुक़य्यदा हमारी क्या इस्तिलाह है? विलायत मुतलका से मुराद जो है हम क्या लेते हैं? विलायत फ़कीह मुतलका से ये मुराद लेते हैं कि फ़की जो है उसका दायरा कार उमूर हिस्बिया तक महदूद नहीं है। उमूर हिस्बिया के अंदर जो है विलायत फ़कीह को जो बयान किया जाता था उसमें दायरा बहुत तंग था। मसलन मजनून जो अफराद हैं उनकी विलायत जो है वो फ़कीह को हासिल होगी, या इस किस्म के जो बहुत ही छोटे लेवल के जो उमूर होते थे उनको हमारे फुक़हा जो हैं वो विलायत के दायरे में लेकर आते थे। लेकिन विलायत फ़कीह मुतलका जो है आके नज़रिया देता है कि यहाँ तक दायरा कार जो है उसका ख़त्म नहीं होता है, बल्कि सियासत के अंदर भी जो है वो किरदार है विलायत फ़कीह का। इसका दायरा कार जो है मजनून अफराद की विलायत की हद तक मुक़य्यद नहीं है। तो मुतलका से मुराद ये है कि दायरा कार के एतबार से। तो ये एक मतलब। दूसरा ये कि ग्लोबलाइजेशन आपने कहा कि विलायत फ़कीह जो है वो छुपा रहा है, विलायत फ़कीह के मानने वाले। नहीं, हम नहीं छुपा रहे हैं। मैं इस वक्त जो है इसी प्रोग्राम में इस बात को बयान करता हूँ। हमारी किताबों में ये लिखा हुआ है कि नज़रिया विलायत फ़कीह हमारी नज़र में एक इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम है, और हमारी नज़र में अगर ये इस्लामिक जो पॉलिटिकल सिस्टम अगर इम्प्लीमेंट होता है तो इस्लामी तर्ज तफक्कुर के साथ हम जो हैं वो इस्लामी मुआशरे को हिदायत की तरफ ले जा सकते हैं, जिस तरफ खुदा ने एक इंसान को खल्क किया है और हिदायत तक पहुंचना है। और ये ग्लोबल ही है, जोग्राफिए के अंदर मुख्तस नहीं है। ये अपने नज़रिए के अंदर नज़रिया हम जब दे रहे होते हैं, जैसे मसलन डेमोक्रेसी का जब नज़रिया दिया जाता है तो नज़रिया बयान करते हैं कि अगर इसको जो भी अप्लाई करेगा वो हिदायत तक पहुंचेगा, मुआशरा बेहतर हो जाएगा। इसी तरीके से बादशाहियत का जो निज़ाम पेश किया जाता है वो भी तकरीबन इसी तरीके। तो हम भी जब नज़रिया बयान करते हैं, जैसे मसलन अहले सुन्नत खिलाफत का नज़रिया देती है, तो खिलाफत में क्या होता है? अहले सुन्नत क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये खिलाफत का नज़रिया इस्लामी निज़ाम है एक सियासी, कि अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो इस्लाम का बोलबाला होगा और इस्लाम के जो अहदाफ हैं वो पूरे होंगे, और तमाम मुआशरे जो हैं वो हिदायत पाएंगे, जो भी इसके तहत आ जाएगा, चाहे वो मसीही हो जो भी हो। तो हमारा भी यही दावा है कि विलायत फ़कीह का नज़रिया एक इस्लामी नज़रिया है और ये ग्लोबल है। लेकिन अब आ जाते हैं ग्राउंड रियलिटी के ऊपर कि नज़रिया तो ग्लोबल है, लेकिन आया ये इस वक्त इम्प्लीमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त जुग्राफियाई तकसीम जो मौजूद है, बॉर्डर के जो सिस्टम मौजूद हैं, फिर हर मुल्क के जो अपने क्या है रेड लाइंस जो मौजूद हैं, कवानीन जो मौजूद हैं, वहाँ मुदाखलत होती है, वो काबिल कबूल नहीं होती है। तो इस वक्त जो है प्रैक्टिकली तौर के ऊपर जो है विलायत फ़कीह का निज़ाम जो है वो ईरान के अंदर इम्प्लीमेंट है, तो अभी वहीं पर ही जो है चलेगा। हाँ, हम अपने दलाइल दे रहे हैं, अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं, अपनी वजाहतें पेश कर रहे हैं। अब जिन जिन को ये नज़रिया पसंद आता है और वो समझते हैं कि डेमोक्रेसी का नज़रिया फ्लॉप हो चुका है, बादशाहियत का नज़रिया फ्लॉप हो चुका है, इस नज़रिए के ऊपर काम करके देखते हैं कि आया ये हमारे लिए बेहतर साबित हो सकता है। खूब ये पूरा नज़रिया उसको देख लें आकर। तो ये इस तरीके से है, छुपाने वाली बात नहीं है। हम अभी भी आप जाकर किसी भी जगह पर मोतबर आलिम की वेबसाइट पे भी जाकर, कभी हमने ये धोखा नहीं दिया कि हम ये कह रहे हो कि नहीं नहीं विलायत फ़कीह का असल नज़रिया ग्लोबल नहीं रहा। मसलन यूं करना, नज़रिया अब भी ग्लोबल है, और हम चाहते भी हैं कि इस बात हकीकत को एक बात बयान है, करके लोगों को मुझे उसकी तरफ मेरा मुतवज्जे करें। मुझे हाँ, जी जी। मुझे ये फहम नहीं है कि नजरिया लोकल हो ही नहीं सकता। जाहिर जी है निहाल साहब। सामने बात बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये बात मैं बात पूरत हम कह रहे हैं, मैं बल्कि अम्र जो है नायब मैं नायब इसकी वजाहत करने के लगा हूँ, मैं मैं इसकी इसी पे वजाहत आ करने रहा लगा हूँ। फाइल, उसका हूँ। अम्र जो है वो बाकी दुनिया में रहने वाले जी जीवों के लिए गैर मुताल्लिक कैसे हो सकता है? ये जी जी बिल्कुल। मैं जी। मैं अर्ज कर रहा हूँ ये। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ ये।
यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई कि मसलन जो थोड़ी बहुत मैंने वजाहत करनी थी वो कर दी है। इसके बाद जो है वो ये वाली बात आती है कि अब वलायत फ़क़ी का नज़रिया जो है वो कायम हो गया है अब दूसरे ममालिक के अंदर जो हैं। मैं इससे पहले एक नुक्ता जो है आपकी तरह आपकी गुफ्तगू में जो कि मौजूद था उसकी वजाहत जल्दी जल्दी कर देता हूँ। आपने कहा कि इमाम तो जो है वो हुज्जत है, मासूम है, तो फिर वली फ़क़ी जो है वो तो हम उसको मासूम तो नहीं मान सकते, उसको हुज्जत नहीं मानेंगे। हम भी विलायत फ़क़ी के नज़रे में वली फ़क़ी को ना मासूम समझते हैं और ना ही हम जो है मासूम की तरह उस लेवल की उनको हुज्जत समझते हैं। विलायत फ़क़ी में वली फ़क़ी कुबला। एक आम इंसान, लेकिन चूंकि महारत रखता है दीन के ऊपर, और हुज्जत इस माना में है चूंकि फाइनल अथॉरिटी है। अब जहां भी चले जाएं, आप फाइनल अथॉरिटी जब देते हैं तो अब वो उसकी बात मानना ज़रूरी हो जाता है, वरना हर जो मज लाजिम आएगा आपस में जो है वो कभी भी मुआशरे सही समत की तरफ नहीं जाएंगे। आपको एक फ़ाइनल अथॉरिटी रखनी होती है, वो फाइनल अथॉरिटी जो है वो वली फ़क़ी है। ये एक बात थी तो मैंने उसकी वजाहत कर दिया। दूसरा ये कि अब वली विलायत फ़क़ी का निज़ाम जो है वो कायम है ईरान के अंदर। वली फ़क़ी जो है हमने कल ही प्रोग्राम किया है, उसके अंदर इसके ऊपर हमने तफसील से गुफ्तगू की है कि ईरान से बाहर विलायत फ़क़ी का क्या कंसेप्ट होगा। तो उसका मैं खुलासा अर्ज किए देता हूँ। यहाँ पर अगर आप मसलन आप देखें खुद रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामनाई की आप वेबसाइट पर जाकर उनके जाकर देख लें, वहाँ पर भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। उसके बाद जो इस वक्त थ्योरेसन हैं, यानी आप कहें विलायत फ़क़ी को आज के दौर में सही तौर पर जो बयान किया और फिर उसको तरवीज भी की है, जैसे आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी हैं, शिगरी साहब इसको इन लोगों को जानते हैं। आयतुल्लाह जवादी आमुली हैं, इन्होंने अपनी किताबों में साल साल पहले लिखा है, यानी अभी विलायत फ़क़ी अपनी इब्तदाई सूरत में मौजूद थी तो उस वक्त इन्होंने ये बहसें डिस्कस की हैं कि अगर हम जो नज़रिए के तौर पे तो उसको ग्लोबल समझते हैं तो आज के इस जुग्राफियाई तकसीम के अंदर क्या करेंगे। तो वहाँ पर यही कहा है कि इंसान जो है वो अपने मुल्क के अंदर मौजूद कवानीन की पासदारी करेगा और उनका हुक्म जो है वो उस तरीके से नाफिज नहीं होगा कि आप कहें कि वली फ़क़ी ने एक हुक्म दे दिया और अब पाकिस्तान की जो है वो हुकूमत ने एक हुक्म दे दिया, अब हम जो हैं वो हतमन ईरान के इस वली फ़क़ी के हुक्म को मानते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाएंगे। ये ख़ुद वली फ़क़ी ने इस बात को कहा है कि आपने अपने पाकिस्तान अपने ममालिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी जो है वो नहीं करनी है। रुकावट की सूरत में आप जो है जब ग्लोबल एक नजरिया दे रहे होते हैं उसके आगे जो जो रुकावटें आती हैं वो रुकावट उसके नफूज को रोक देती है। तो अब ये जो जुग्राफियाई तकसीम है अपनी असल के अंदर हुक्म तो नाफिज है, चूंकि विलायत फ़क़ी का नजरिया ग्लोबल हम बयान करते हैं, लेकिन इस वक्त जुग्राफियाई तकसीम रुकावट है और इस रुकावट के अंदर जो है हम कायल हैं कि हम अपने मुल्क के कवानीन के मुताबिक उसकी पासदारी करते हुए उसके मुताबिक चलेंगे। और दूसरी बात यह है कि वली फ़क़ी ने अभी तक ये बात साबित हुई है, कोई ऐसा हुक्म भी सादिर नहीं किया है कि जो किसी भी मुल्क के कानून की खिलाफ वर्जी करने की तरफ दावत दे रहा हो और ये कई अमल भी हुआ हो। ये इस तरीके से जो है मौजूद है, क्योंकि हमारे नज़दीक वलायत फ़क़ी के अंदर वली फ़क़ी को आदिल होना ज़रूरी है और अदालत की शर्त यह है कि वो कोई ऐसा हुक्म ना दे जो किसी के नुकसान और ज़रर में जाए। अगर वो ऐसा कोई हुक्म सादिर कर देता है उसकी अदालत ख़त्म हो जाएगी, उसकी विलायत खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, उसको मनसूख करने की जो है वो ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। तो ये हमारे नज़रिए के अंदर बॉर्डर के अंदर जो मसाइल हैं वो ये उसकी वजाहत है मुख्तसर तौर पे। कबला जाहिद साहब, वो मेरे ख्याल से जावेद साहब की, सॉरी जावेद साहब, मैं एक बात यहाँ कर दूं। यानी ये तो जावेद साहब ने नहीं कहा था कि नजरिया जो है ना वो आलमगीर नहीं है। जावेद साहब शायद ये कह रहे थे कि चूंकि ये नियाबत इमाम है, यानी आप ये फरमा जी रहे हैं कि वली फकी जो है वो नाइब इमाम है और वली फकी ये सियासी मानों में। तो जावेद साहब शायद ये कह रहे थे कि वो चूंकि इमाम की इमामत जो है वो जुग्राफिया से जी जी मावरा है, तो जी फिर जी इसको भी थोड़ा होना ये भी जी चाहिए। जी। बात कर इस इसी होना ऐसा इसी का ये चाहिए। जवाब, इसी का जवाब मैंने यही दे दिया कि हम भी कायल हैं कि वली फ़क़ी जो है वो चूंकि नज़रिया ग्लोबल है, ये अपना इसकी हुकूमत भी ग्लोबल ही है, लेकिन चूंकि इस वक्त रुकावटें मौजूद है ना, चूंकि ये और ये रुकावटें जो है वो बाबरकों अभी की हल होने वाली भी नागवानी नहीं है है। या नहीं है? जी जी। पाकिस्तान का शिया महसूस करे कि वली फकी के अम्र में पाकिस्तान रुकावट है,
تو وہ پاکستان کی شہریت کے لیے درکار حب الوطنی رکھ سکتا ہے ایران کے رکھ سکتا مقابلے؟ ہے، رکھ سکتا ہے، اگر رکھ سکتا ہے آپ، نہیں دیکھیں، ایک بات میں آپ سے، میں خود ولی فقیہ کے نظریے کو مانتا ہوں، اس کو پڑھاتا ہوں، اس کی ترویج کرتا ہوں، اور انہی کی ارشادات کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں کہ ملک کے جو اپنے قوانین ہیں، یہ انہوں نے خود کہا ہے اپنے ملک کے قوانین کی پاسداری آپ نے کرنی ہے، تو کیا یہاں یہ پر تو انہوں نے قلبی تحویل میں دے دی ہے؟ کیا ان کے اس حکم پہ سب تشیع راضی ہے؟ سب صاحب راضی ہیں؟ تشیع آپ ہے؟ اس وقت دیکھیں، آپ دیکھیں پاکستان کی تشیع نے کون سا عمل کیا ہے کہ جہاں سے آپ یہ نتیجہ لیں کہ یہ پاکستان کی شہریت کی وفاداری نہیں کر رہے ہیں؟ کوئی اچھا، ایسا کوئی عمل آپ نے ابھی تک دیکھا ہو؟ نہیں، تھوڑا سا اس میں پیچیدگی ہو جائے گی، میں علمی رکھنا چاہتا ہوں، ایک علمی تجزیہ۔ آپ یہ بتائیے کہ ولی فقیہ، نائب امام غائب، جی جی اور ولایت نیابت مطلقہ کے حامل، وہ تشیع کے مطلب سنت امام مہدی کی جہت ہدایت سے کوئی سیاسی رائے دے رہے ہیں، اس سیاسی رائے سے روگردانی کچھ آزار کی وجہ سے ممکن ہے کہ بھئی یہ مجبوری ہے، تو کیا پاکستانی شیعہ اس مجبوری سے جی زیادہ کچھ محسوس کرے گا کہ میں پاکستانی؟ جی جی بالکل بالکل، میں آپ کی وضاحت عرض کرتا ہوں، دیکھیں نظریہ ولایت فقیہ کی اگر تھوڑی سی وضاحت، میں اردو میں اس وقت کتابیں بھی کافی ترجمہ ہو چکی ہیں بلکہ لکھی بھی جا چکی ہیں، اس میں ایک دو لیول پہ جو ہے وہ بات ہوتی ہے ولایت فقی، ایک مرتبہ مشروعیت لیجٹمیسی کی جو ہے بات ہوتی ہے کہ یہ یعنی خدا کی طرف سے یا پیغمبر یا امام کی طرف سے اس کا جواز فراہم ہوا ہے یا نہیں، ایک یہ بحث ہوتی ہے۔ دوسری بحث یہ ہوتی ہے کہ ولی فقی کا حکم نافذ کب ہوگا، تو وہاں پر مقبولیت کی بات آتی ہے کہ اگر ولی فقی کو قبول کیا جا رہا ہے تو اس کی مقبولیت سبب بنے گی کہ اس کا حکم نافذ ہو جائے۔ تو اب پاکستان کے اندر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں اکثریت اہل سنت کی ہے، وہاں پر نظام بھی جو ہے وہ ڈیموکریسی کا ہے، اور مقبولیت جو ہے وہ نہیں پائی جاتی، تو اس مقبولیت کے نظریے کے تحت جو ہے وہ وہاں پر ان کا حکم نافذ ہی نہیں ہے، تاکہ آپ یہ بحث کریں کہ یہاں پر یہ پاکستان کے ساتھ وفاداری جو ہے وہ رکھ سکیں گے یا نہیں رکھ سکیں گے، تو یہ والی بات آ جاتی ہے۔ اور دوسری بات میں نے عرض کر دیا ہے کہ یہ آپ کی ایک تھیوریٹیکل بحث ہے کہ اگر ایسا ہو جائے، میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ اس پورے عرصے کے اندر جب سے نظام ولایت فقیہ قائم ہوا ہے، نہ تو کوئی ایسا حکم صادر ہوا ہے کہ جو ایک ملک کی سالمیت کے خلاف کوئی بات کر رہے ہوں، اور نہ ہی مکتب تشیع پریشان نظر آیا ہے کسی مورد میں کہ ہم نے یہاں پاکستان کے ساتھ وفاداری کرنی ہے یا ایران کے ساتھ ولایت فقیہ کے، بلکہ ہمیں جو ہے پاکستان کا تشیع پاکستان کی سیاست میں اپنا کردار نبھاتے ہوئے جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، کوئی مشکل پیش جو ہے وہ نہیں آ رہی ہوتی، تو بس یہ مقبولیت لیکن والی بات کی ہاں، طرف توجہ ضرور کیجیے گا۔ نہیں، وہ زاہد آپ زاہد صاحب، گزشتہ سال بات جو نہیں حملہ ہے، ہوا وہ تھا اس پہ بات تو ہے تقسیم ہوئی تھی۔ شرائط تعمیل کی۔ جی جی جی، اس آپ کے اوپر بھی کل ہم نے گفتگو کی ہے تفصیل سے، تعمیل اس میں اپنی کی رائے کا ہے اظہار تو کیا ہے۔ ناگواری کے ساتھ میں ہاتھ پہ ہاتھ باندھے بیٹھا رہوں گا کہ ممکن تعمیل نہیں ہے، لیکن دل سے خواہاں ہوں گا کہ یہ ہاں رکاوٹ ہٹ جائے۔ بالکل 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 ایسے ہی ہے، بالکل بس ایسے ہی ہے۔ مطلب ہاں یہ کہ بالکل ایسے بالکل ہی ہے، یہ آپ دیکھیں وہی نا نظریہ، دیکھیں دو سکول آف تھاٹ ہیں، بلکہ آپ دوسرا بھی لے کے آ جائیں کہ اس میں دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو فہم ہے اسلام کا وہ زیادہ بہتر ہے، اور حقیقی اسلام یہی ہے۔ اہل ہاں، سنت کی طرف سے دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا جو فہم ہے اسلام کا وہ درست ہے۔ اصل بحث یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے دلائل دے، اپنے دلائل کے ساتھ پڑھے لکھے لوگوں کو قانے کرے، اور لوگ پھر فیصلہ کریں، اور پڑھے لکھے لوگ فیصلہ کریں کس کی طرف جانا ہے۔ اب ہر سکول آف تھاٹ اپنا اپنا نظریہ رکھتا ہے، اس میں ایک اسلامک پولیٹیکل سسٹم ہے، ہمارا ولایت فقیہ کی نظر میں ہے، شکل میں ہے، ان کا خلافت کی شکل میں ہے۔ اب علمی بحثیں اور علمی گفتگویں، علمی کتابیں، علمی تحریک جو ہے یہ طے کرے، اور تاریخ فیصلہ کرے گی کہ واقعاً کون اپنے دعوے میں سچا ہے، اور پھر کس کی اتباع ہونی چاہیے اور کس کو گلوبلائزیشن ملنی چاہیے۔ سب چیزیں تعطل میں نہیں رکھنی چاہیے۔ ایک تھوڑی سی میری آپ کو ایک نصیحت ہے
متکلم پر اعتماد کیا کریں، مطلب یہ مذہبی لوگوں کا ایک تکیہ کلام بن جائے کہ آپ سمجھے نہیں، تو ایک مرتبہ نہیں، آپ سے ولایت اگر میری طرف سے ہوا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں نہیں، آتمن جو ہے میں آپ قصدن نہیں ہوا۔ معلومات ناقص ہیں، اور یہ ہے وہ سب نہیں، ولایت فقیہ کو شاید میں آپ سے بہتر بیان کر سکتا ہوں، اس کے تمام شیڈز کو، جی جی، اور وہ نہیں اس میں نہ پڑیں چلیں ولایت ٹھیک ہے۔ فقیہ۔ ہم تو آپ سے صرف اس لیے سننا چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے باعث آزار نہ بنے، جی جی ورنہ جی، ولایت ٹھیک ہے، آپ نے بالکل ایسے، مجھے بھی خوشی ہوئی ہے، اور آپ نے بھی بہت اچھی اچھا ہو گیا۔ گفتگو کی ہے۔ جی جی، اب ایک بات میں تھوڑا سا علمی فارمولیشن کر دیتا ہوں جس میں یہ مذہبیت ذرا رہ جائے ایک طرف، وہ یہ میں اپنا ٹوٹل موقف جیسے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا میرے خیال میں پھر اس کو اینڈنگ اپنا اسٹیٹمنٹ ہی ہوں رکھتے ہیں، تھوڑا آپ کریں پھر ذرا، میں اس کے اوپر آخری گفتگو کر لوں گا پھر۔ ہاں ہاں بالکل، تو وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ عقل جو ہے وہ کسی تنقید اور کسی تجزیے کی بنیاد محض منطقی استدلال پر نہیں رکھتی، بلکہ اس خیال اور اس پر عمل کے نتیجے میں جو مظاہر سامنے آتے ہیں اس کو بہت زیادہ وزن دیتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں پریگمیٹک اپروچ، یعنی حکم اعتبار نتائج، یہ عقلی مسلمہ ہے۔ اب دوسری بات میں اس کو اس طرح نہیں پھیلا رہا کہ کسی پہ تنقید ہو کسی کے وہ، ایک یہ کہ دین اور تعبیر دین، یہ میرے خیال میں بہت اہم مسئلہ ہے، کہ جیسے تسنن اور تشیع یہ تعبیری کل ہے دین کا، یعنی جو بھی ہمارا مفہوم ہے وہ تعبیر ہے، تو دین اور تعبیر دین میں نسبت، اب یہ ماشاءاللہ قم میں پڑھاتے ہیں تو ان کے لیے اس تک فوراً پہنچ جانا کوئی مشکل نہیں ہے، جی وہ عام خاص مطلق کی ہے یا عام خاص من وجہ کی ہے، یہ آپ کے لیے میں سوال چھوڑ رہا ہوں کہ اسلام اور تشیع میں نسبت عام خاص مطلق کی ہے یا عام خاص من وجہ کی ہے۔ پھر جیسے سنیوں کا ایک وہ جو ہے، یوں کہہ لیں کہ ایک مدر ڈسکورس ہے، تسنن کے تاریخی مظاہر کا ایک اوریجن ہے، وہ ایک روایت ہے کہ وہ قرآن اور سنت کے تسلسل پہ چل رہے ہیں، قرآن اور سنت کو تعبیر کی کا جوہر بنا رہے ہیں۔ تشیع جو ہے وہ قرآن اور اطرت کے اصول پہ چل رہا ہے۔ اب اس میں کوٹ کرنے میں کوئی وہ، اب اس کی شرح میں ہم غلطی یا صحت کر سکتے ہیں، لیکن یہ جیسے میں کوٹ کر رہا ہوں تاکہ ایک اینگل مل جائے، اور شیخ سید حسین نصر ہیں، وہ شیعہ بھی ہیں اور شیعی تاریخ کے بہت ہی بڑے عالم بھی ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، ان کے شیخ ہیں شوان، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، وہ اچھا جملہ تھا کہ شیعیت میں ذات منتقل ہوتی ہے اور تسنن میں فعل اور امر، یہ صرف جیسے ریکارڈ کروا رہا ہوں، اس کی شرح میں نہیں جا رہا، یعنی سنت نقل اقوال و افعال ہے اور اطرت نقل ذات ہے، انتقال ذات ہے، یہ امامت کا بیج ہے۔ تو اب ہمیں اس میں یہ دیکھنا ہے، اور کسی بھی مذہبی بحث کے دائرے کو تعصبات سے پاک رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان سوالات کے کو اس پس منظر میں بھی دیکھنے کی کوشش کریں
تاکہ ایک دوسرے کے لیے خود کو قابل قبول بنایا جا سکے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ مطلق، اب میں یہ ولایت مطلقہ پر بھی اپلائی ہو سکتا ہے کہ مطلق اگر ایک لفظ ہے، اصطلاح ہے، تو اس اصطلاح کو میں ترمیم کا کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. اس کو پورا رد کرنے کا اختیار ہے. اس میں موجود مفاہیم میں تغیر کا اختیار نہیں ہے. یہ جیسے اصول علمی ہے، تو مطلق کی اور اس کی اطلاقی اضافتیں. مطلق قرآن ہے، مثال کے طور پہ مطلق قرآن ہے. قرآن کی کچھ اضافتیں ہیں، کچھ اطلاقی نسبتیں ہیں. یعنی نفس دین اور فہم دین مختلف اصطلاحوں میں کہہ لیں. تو اب اس میں یہ کہ مطلق اور اس کی اضافتوں میں اضافت پر حکم اطلاق کا لگے گا یا اس کی عرضیت باقی رہے گی. یہ بھی ذرا سا نوٹ کر لیجئے. اور جو اہم ترین سوال ولایت فقیہ کے تصور پر علمی بحث کرتے ہوئے پیش نظر رکھنا چاہیے، وہ ہے امامت اور نیابت، ان کے درمیان نسبت عینیت کی ہے یا غیریت کی ہے، یا پھر شیعی کلامی موقف کے مطابق لا عین و لا غیر ہیں. پھر ایک اور مطلب یہ کہ اب یہ سب میں اپنی جیسے ان میں سے ایک ایک پر میں گھنٹہ بول سکتا ہوں، امید تو یہی ہے. اب یہ دیکھا جاتا ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نفسیاتی تاثیر اور باطنی تشکیلات کو نظر انداز نہ کیجیے. کتاب سند کتاب کسی چیز کے لکھا ہوا رد و قبول کی سند نہیں ہے. اس لکھے ہوئے کو مان لینے کے عملی اور احوالی نتائج دیکھے جائیں گے. لکھا ہوا تو سب صحیح ہے نا. مثال کے طور پہ کہ اصول اور اس کے مظاہر، یہ ایک موضوع ہے نا. توحید ایک اصول ہے، اس کو میں انٹرنلائز کرنے کا پابند ہوں. اسے انٹرنل جذب کر کے میرے احوال سے عمل تک اس کا اظہار ہوتا ہے. اسی طرح رسالت، اسی طرح معاد، اسی طرح امامت، جو بھی اصول کی فہرست ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ مکتب تشیع نے کیا ڈسکورس کتابی صورت میں آئیڈیل، فلا لیس، پرفیکٹ بیان اصول، مطلب سب ٹھیک ہے، جو بھی ہے سب ٹھیک ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان اصول پر ایمان رکھنے کے نفسیاتی اور عملی نتائج کیا ہیں. کیا توحید اپنی مرکزیت کے ساتھ مزاج تشیع سے ظاہر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام ائمہ کی محبت پر غالب ہے ازرو احوال. تو اب یہ سب چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ میں خود دفاعی پوزیشن لے کر وہ اس سے ثابت کروں کہ نہیں تمہارا یہ اعتراض غلط، تمہارا وہ اعتراض غلط. اس سے یہ ہوگا کہ میں آپ سے پھر فائدہ نہیں اٹھا سکوں گا. مکالمے کی اصل یہ ہوتی ہے کہ مفاد کیا ہے کہ میری غلطی درست ہو جائے یا آپ کی غلطی درست ہو جائے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں کہ شیعی پیراڈائم میں دین کا ایک بہت ہی بنیادی مطالبہ ہے، کسی بھی بائنڈنگ نظریے کا، دین کا ہی نہیں، کسی بھی بائنڈنگ نظریے کا جسے مطلق کی حیثیت حاصل ہو، اس کا یہ تقاضا ہے آپ سے کہ اس مطلق کو آپ اپنے احوال، اظہار اور کردار سے مظاہر کیا وہ پیدا کر رہے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انقلاب ایران کا یہ فائدہ تو ہے کہ جلوس میں زورین پڑھی جانے لگی عاشورے میں.
یہ تو ہے کہ مسجدیں کچھ آباد ہونے لگیں، لیکن کیا انہوں نے اس مزاج تشیع کو مطلب معیاری حد تک اپنے ہی ڈسکورس کے مطابق بنانے میں کوئی بڑی کامیابی حاصل کی ہے؟ کیا جیسے ہم صوفیوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کہ وہ لگتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد بڑھانے کے لیے ہے، یہ نہیں، کسی ایک کی بات نہیں کر رہا۔ تو ہم اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ ولایت فقیہ مکتب تشیع کے مزاج مذہبی میں راسخ اینتھروپومارفزم کا مورچہ ہے، اس کا محافظ ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کو آپ مذہبی رنگ دیے بغیر اس پہ ہم سے جتنا چاہے مکالمہ کر لیں۔ اینتھروپومورفک ٹرینڈ جو راسخ ہے مزاج تشیع میں، یہ اس کو آخری شکل دے رہا ہے، یہ اس کو آخری درجے میں لے جا کے مکمل اور ایپلیکیبل بنا رہا ہے۔ اب آپ فرمائیے گا۔ جی بہت شکریہ، اختتامیہ بیان اچھا رہا، ایک دو نکات آپ نے اچھے بیان کیے، میں چاہوں گا یہ ایک اچھا اختتامیہ بیان میرا بھی ہو جائے گا۔ ہاں، دیکھیں اس بات کو تو میں بھی قبول کرتا ہوں کہ دین اور ہے، فہم دین اور تعبیر دین اور ہے، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تعبیر دین دعویٰ نہیں کر سکتا کوئی بندہ کہ تعبیر دین بغیر دلیل کے عین دین کہلائے، لیکن آپ کبھی بھی اس تعبیر دین کو ہمیشہ دین سے مغایرت میں نہیں رکھ سکتے، چونکہ جو انسان بھی تعبیر دین کرتا ہے اس کا متمع نظر یہ ہوتا ہے کہ میں دین کو بیان کر رہا ہوں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فہم دین۔ تو اب جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں دین کو بیان کر رہا ہوں تو دلائل طے کریں گے کہ تعبیر دین آیا دین ہے یا نہیں ہے۔ آپ اس نظریے کو بیس بنا کر کبھی بھی ہر تعبیر کو غیر از دین قرار نہیں دے سکتے، یہ بات درست ایک اصول کے طور پر کہ دین اور تعبیر دین، دین اور فہم دین یہ فرق کرتے ہیں، یہ عینیت نہیں رکھتے ہیں، ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن اب یہ میں ہوں، میرے دلائل ہیں کہ جو طے کریں گے کہ میں نے جو فہم کیا ہے، چونکہ میں دیندار بندہ ہوں، میرے لیے قرآن اہم ہے، میرے نزدیک روایات اہم ہیں، میں اب دلائل سے یہ بات ثابت کروں گا کہ میں نے جو فہم کیا ہے وہی مراد اللہ ہے، وہی مراد پیغمبر ہے، یہ میرے دلائل طے کریں گے۔ تو لہٰذا یہ ایک جو ہے وہ فیلسی نہ رہے۔ میں نے بعض اوقات دوسرے محافل کے اندر دیکھا ہے، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں خود بھی فلسفی آف ریلیجن کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور اس کو پڑھا بھی کافی عرصے سے رہا ہوں، اور علم تعبیر اور ہرمونوٹکس کی جو بحثیں ہیں اس کو میں نے بڑی دقت سے جو ہے وہ دیکھا ہے۔ تو اس میں ایک غلط فہمی جو ڈالی جاتی ہے، آپ کی بات نہیں کر رہا، کلی بات کر رہا ہوں فقط اس بات کو بیان کرنے کے لیے، کہ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی تعبیر دین اور دین فرق کرتا ہے، بس جو بھی اپنی فہم بیان کر رہا ہے نا وہ ہمیشہ دین کے مخالف ہی تعبیر شمار ہوگی نا، ایسا نہیں ہے۔ دلائل طے کریں گے، آپ آگے دلیل کے اوپر بحث کریں گے کہ اس کے دلیل کتنی قوی ہے، آیا اس کی تعبیر دین یا فہم دین دین کی بات کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے۔ یہ ایک بات اس میں نے آپ کو اب یہ بات واضح ہے، میں بھی اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ اسلام ایک حقیقت ہے، اس کی ایک فہم مکتب اہل سنت ہے، اس کی ایک فہم مکتب تشیع ہے، یہ تعبیر دین ہے، فہم دین ہے۔ اب دلیل نے آ کر فیصلہ کرنا ہے کہ آیا جو مکتب تسنن نے فہم دین کر کے دین ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ عینیت رکھتا ہے یا نہیں، وہ علمی ڈیبیٹس، اسی طرح کی گفتگو، کتابیں اور یہ چیزیں جو ہیں وہ طے کریں گے اس کے اندر۔ تو ہمسوئی جو ہے وہ تعبیر دین اور دین میں پیدا ہوتی ہے دلائل کی روشنی میں، جس کی دلیل قوی ہے،
जो काने कर ले तो इसका मतलब ये है कि आप कह सकते हैं, क्योंकि आपके पास अब नक़ नहीं है, उसको आप समझ सकते हैं कि ये जो फ़हम इसने की है ये दीन ही का जो है वो फ़हम निकलेगा। दूसरी बात आपने जो की है कि हुसैन नस्र के शेख की तरफ से, सैयद हुसैन नस्र को भी मैं जानता हूँ, उनकी किताबों का मुताला है मेरा। तो ये जो उनका एक अपना, आप यही कह लें कि हर एक की अपनी रिसर्च है, अपनी ताबीरें हैं, अपनी टर्म्स हैं, वो एक को समझने के बाद एक टर्म्स के शक्ल में उसको बयान करता है, खूब उसको हक है वो बयान करे। ये जो इन्होंने बयान किया मैं उससे इत्तेफाक जो है वो नहीं करता कि सुन्नत जो है वो नक़ल अक़वाल का नाम है और इतरत जो है वो नक़ल ज़ात का जो है वो मतलब है इसका। ना, इस तरीके से नहीं है। जब कभी इसके ऊपर आप ज़रा तफसील से बात करेंगे तो हम भी उसके ऊपर फिर अपना हाशिया जो है वो लगाएंगे। बल्कि इतरत के अंदर भी जो है वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जो है, हम उनको जो ये रिवायत मौजूद है कि अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, पैगंबर के इल्म के दरवाज़े को हम इतरत कहते हैं। तो लिहाजा पैगंबर ही का नॉलेज जो है वो अहले बैत और इतरत के ज़रिए हम तक पहुंचता है। तो ये इस तरह की तफकीक करना मेरे ख्याल में हम उसको काबिल कबूल नहीं समझते, मगर ये कि नज़रिए को जब कभी खोला आपने अपने बयानात के अंदर आके तो उस पर फिर इंशाल्लाह फिर तबसरा एक इल्मी तौर पर और आलिमाना तौर पर जो है वो हो जाएगा। फिर वो इतलाक़ियत और इजाफ़ियत की जो आपने बात की, तो मेरा ख्याल में ताबीर दीन और फ़हम दीन में उसका जो है वो मैंने जवाब यानी अपने ताईं जो है वो जवाब दे दिया है। यानी मैं अपना अपना फ़हम आपके सामने जो है वो पेश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह के नाजरीन जो हैं उनके लिए राहगुशा ये चीज़ हो जाएगी। एक आपने इमामत और नियाबत की अहनियत और गैरियत के हवाले से बात की है, तो मैं जो आपको अर्ज़ कर रहा था वो यही है कि देखें, हमारे नज़दीक जो नियाबत का यानी विलायत फ़क़ीह के अंदर या खैबत के अंदर जो नियाबत का नज़रिया है उसकी डोमेन में आकर उसको देखें। हमारे नज़दीक इमाम जो है वो हर पहलू में हुज्जत है, यानी उसका कौल फेल वो हुज्जत है और वो मासूम है, इस्मत दलील है कि वो हुज्जत हैं। हम फुकाहा को उनकी गैर मौजूदगी में नाइब समझते हैं और उनकी जो डोमेन है उसके अंदर, मसलन फ़र्दी ज़िंदगी के अंदर जो है वो दीन की फ़हम फ़र्दी जैसे फतावा की शक्ल में फ़िक़्ह को बयान करना है, या समाजी और सियासी तौर पर जो है अपने पॉलिटिकल साइंस को इम्प्लीमेंट करना है फाइनल अथॉरिटी के तौर पर, ये वहाँ पर हम इनको जो है वो नाइब जो हैं वो तसव्वुर करते हैं कि ये इसके इमाम के जो है वो नाइब बनते हैं। नाइब कभी ऐन नहीं बन सकता, चूँकि इमाम को हम इंसान कामिल समझते हैं, इमाम को हम मासूम समझते हैं, और गैर मासूम कभी भी इमामत का ऐन नहीं हो सकता। ये मनसब वाली जो आपने बात की थी वो मनसब वाली बात दुरुस्त है कि हम जो हैं मनसब के अंदर नाइब समझते हैं कि एक इल्मी मरजइयत है कि आपको अगर कोई इल्मी मुश्किल पेश आ जाए तो कहाँ रजू करना है। तो इमाम ने अपने नाइब यानी फ़कीह को करार दिया कि अगर मेरे तक दस रसाई ना हो तो तुम फ़कीह के पास चले जाना, और अगर जो है तुम्हें समाजी मुश्किल कोई पेश आ जाए तो किसकी तरफ रुजू करना है, तो उनकी भी सिफात जिक्र करके फ़कीह की तरफ रुजू करने का हुक्म दिया है। तो ये इस तरह का मुआमला है, वो उस तरह का मामला नहीं है जैसे इरफान के अंदर जो है वो इंसान कामिल की बहस मौजूद है, या मसलन वजूदी कमालात की जो बात होती है, ये वो वाली बातें जो है वो नहीं है। हमारे मुराद जो है वो इससे ये होती है। एक आखिरी बात आपका तबसरा और मेरी भी बात ख़त्म हो जाएगी, वो ये कि आपने जो है पाकिस्तान के बाज़ मुआशरों या बाज़ माहौल को मुशाहदा करके ये मतालिब जो हैं वो बयान किए हैं कि आपको लगता है कि तौहीद जो बयान की जा रही है वो मकतब तशय्यो के साथ साजगार जो है वो नज़र नहीं आ रही, या रिसालत से मोहब्बत जो है वो छलकती नज़र नहीं आ रही। वो बाज इस तरीके, ऐसा नहीं है मकतब तशय्यो जो है उसने तौहीद को सही दर्क नहीं किया। हमारे नज़दीक जो है वो तौहीद जो बयान अहले बैत ने बयान की है रिवायात की शक्ल में मौजूद है, वो मौजूद है। हाँ, हमारे मुआशरे में मुश्किल मौजूद है, जिस तरह मकतब अहले सुन्नत के अंदर मुश्किलात मौजूद हैं। आप बरेलवियों के अंदर देख लें, एक अजीब मुश्किल है वहाँ पर। आप देवबंदियों के अंदर देखें, वहाँ अजीब मुश्किल है। अपनी अमल के अंदर ही मुश्किल मौजूद है।
आप लोगों की मेजॉरिटी है वहाँ पर, लिहाजा अगर आपको मस्जिदें नज़र आती हैं तो एक तादाद फिर भी एक आंखों में आने वाली तादाद कम भी आए तो मसलन आप अगर परसेंटेज का हिसाब लगा लें तो आप उसकी निस्बत अगर देखेंगे तो यही सूरत हाल आपको नज़र आएगी कि मस्जिदें भरी हुई आपको नज़र नहीं आएंगी। फ़कत ये कि चंद मरले के अंदर अगर एक मस्जिद है और करोड़ों की तादाद में अफराद मौजूद हैं, उनमें से चंद हज़ार ने आकर मस्जिद फुल कर दी है, तो इंसान फिर ये कहे कि वहाँ तो एक सफ़ मस्जिद की में बनती है, हमारे पास जो है वो मस्जिदें फुल होती हैं, तो लिहाजा यहाँ इजहार तौहीद ज़्यादा हो रहा है, वहाँ कम हो रहा है। तो परसेंटेज का भी जो है फ़र्क है। और मैं इस बात का भी इनकारी नहीं हूँ कि दीनदार अब मुआशरे के अंदर जो है वो दीन से दूरी मौजूद है, जिस तरह के मैंने अर्ज़ किया कि हर जगह पे इस तरह से होता है। लेकिन इसको आप ये नहीं कह सकते कि तशय्यो के अंदर वो पोटेंशल नहीं है कि जिसके अंदर आप कहें कि तौहीद की तरफ या दावत नहीं है या तौहीद को सही बयान नहीं किया गया है। अमल जो होता है लोगों का वो और है, और एक स्कूल ऑफ थॉट जो बयान किया जाता है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो बयान किया जाता है वो और चीज़ होती है। जब एक मकतब की बात होती है, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, उसको हम असील और असल किताबों को मद्देनज़र उनके उसूलों को और ज़िम्मेदार लोगों को देखकर फैसला करते हैं। हाँ, अमल के अंदर ये कमियां जो है वो नज़र आती हैं रिसालत के हवाले। इसी तरीके से मसलन तशय्यो जो है, अगर आप यही चीज़ को मेयार बनाना चाहते हैं एक एक ख़ास महदूदे में, तो आप आकर देख लें ईरान के अंदर इस वक्त जो है नमाज जुम्आ की सूरत हाल देख लें। शब कदर के अंदर रातों में सड़कें ब्लॉक होती हैं, इतने बड़े बड़े मसा जो हैं हरम होने के बावजूद, मस्जिदें होने के बावजूद जो है हमें वहाँ पर कसरत के साथ जो है वो ये चीज़ नज़र आती है। 17 रबीउल अव्वल के ऊपर पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से विलादत पर जो मोहब्बत का इजहार होता है वो आपको नज़र आएगा। पैगंबर अकरम ने ये आप रहबर मुअज्जम जो कि हमारे आप यूं कह लें कि इस वक्त सियासी लीडर के तौर पे कबूल करते हैं, सालों के जो नाम रखते हैं, ईरान के अंदर एक रवाज मौजूद है, रहबर मुअज्जम ईरानी नाम रखते हैं हर साल नौरोज़ के ऊपर, जो कि पहला साल जो इनका फरवरदीन का होता है, नौरोज़ की बात नहीं, फरवरदीन के अंदर जो इनका शुरू होता है, तो नाम रखते हैं। तो वहाँ पर पैगंबर अकरम जो है उसके ऊपर नाम बाकायदा जो हैं वो रखे गए हैं, और इस तरह की हमें मुनासबतें नज़र आती हैं। 27 रजब को जितनी खूबसूरती के साथ मनाया जाता है, उसके अंदर जो है वो रोज़े रखे जाते हैं, और फिर अफ्तारियाँ करवाई जाती हैं। ये एक मज़ाहिर हैं कि जो मोहब्बत है पैगंबर की तरफ जो है वो हमें दावत देती हैं। और फिर खुद अहले बैत के साथ मोहब्बत भी जो है वो पैगंबर ही से मोहब्बत के मुतरादिफ मौजूद है। मेरे ख्याल में इतना मेरे लिए भी काफ़ी है, वक्त भी काफ़ी हो गया है, और आपकी हमारी जो है गुफ्तगू अच्छी रही, यानी वाकई खुशी हुई है। फिर अल्लाह कभी रूबरू होके फिर बहुत अच्छे लगेगा। हम बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, बहुत बहुत जी। जनाब, बहुत उम्दा। मतलब कम से कम मुस्कुरा मुस्कुरा के तो बातें की ना हम लोगों ने, बस यही चाहिए। बहुत नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई है अहमद जावेद साहब, यानी आपकी बुजुर्गी, यानी आपने भाई कबूल किया, मैं गुफ्तगू मुतासिब हुई। नहीं। मुझे हाँ जी, इंशाल्लाह मैं भी आपको मुतासिब नहीं समझता हूँ, लेकिन आपकी मैंने इसीलिए ही तो ये बातें पॉइंट आउट की हैं ताकि वो चीज़ हो जाए उसमें। तो नहीं तो मैं आपसे यानी आपसे इन मसाइल से चंद साल पहले आशना था आपकी वीडियोस के ज़रिए, और बड़ा खुश था इस बात पे कि क्योंकि मैं फ़लसफ़े का स्टूडेंट और उस्ताद हूँ, मुझे बहुत शौक़ है फ़लसफ़े का, पढ़ा रहा हूँ और चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मेरा एक मैं ख़ुद वहदत के ऊपर जब गुफ्तगू करता हूँ, आखिरी बात आगा की बस एक जो है वो समा खराशी करता हूँ कि वहदत के ऊपर एक पहलू जो मैं बयान करता हूँ वो यही इल्मी वहदत है। कि मसलन अभी तक जो वहदत का तज़करा हुआ और आपने भी गुफ्तगू की और वैसे भी रहती है, ये सियासी वहदत के हवाले से बात होती है, समाजी हवाले से बात होती है। लेकिन मेरा ज़्यादा जो रुझान रहता है जिसको मैं बयान करता हूँ, और जो ज़्यादा हमें जो है वो इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आता है, दिल करीब हो सकते हैं, गलत फहमियाँ दूर हो सकते हैं, वो इल्मी वहदत है। इल्मी वहदत से मैं क्या मुराद लेता हूँ, वो ये कि वो मैदान
کہ جن میدانوں کے اندر ہمارے اختلاف یا تو ہیں ہی نہیں یا اگر ہیں تو بہت کم ہیں، ان کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے ہم جو ہیں ہمارے مقابلے میں جو چیلنجز موجود ہیں علمی طور پر ان کا جواب دیا جائے۔ مثلا آپ اس بات کو اپنے درسوں میں بیان بھی کرتے رہے ہیں کہ آپ دیکھیں اس وقت ایتھیزم ایک ہماری نیو جنریشن کے لیے ایک چیلنج کے طور پر آیا ہے، مسلم معاشرے کے لیے، مومنوں کے لیے۔ تو اس کے جواب کے اندر ہمیں جو ہے وہ اسلامی فلسفہ جو ہے وہ بہترین کردار ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے، جس طرح آپ نے میر داماد کا ایک دفعہ حوالہ دیا تھا۔ ملا صدرہ کی کتابوں کو ترجمہ کرنے والے جو ہیں مولانا مودودی اور مناظر احسن گیلانی ہیں، کہ ملا صدرہ کٹر شیعہ ہے اور یہ دونوں بزرگوار کٹر سنی ہیں، اس اعتبار سے دیکھیں، لیکن نہ آر محسوس کیا مناظر احسن گیلانی صاحب نے اور نہ آر محسوس کیا مولانا مودودی صاحب نے۔ اسی طریقے سے آپ مکتب اہل تشیع کے مدارس میں نصابی کتابوں کو اگر آپ دیکھیں تو ادبیات کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ اہل سنت کی کتابیں ہیں، سیوطی پڑھائی جاتی ہے، آپ دیکھیں میعات و عامل پڑھائی جاتی ہے، اور اس طرح کی بعض کتابیں جو اہل سنت جس کے لکھاری ہیں، مصنف ہیں اس کے، ان کو پڑھانے میں آر محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ منطق کے اندر آپ دیکھ لیں، منطق میں تفتازانی نے جو ہے وہ متن لکھا منطق کا، اور اس کے اوپر حاشیہ جو ہے وہ ملا عبداللہ نے لگایا، تو وہ شیعہ سنی دونوں کو دو مدارس میں جو ہے وہ پڑھایا جاتا رہا اب تک۔ اب لکھنے والا متن سنی، شرح کرنے والا شیعہ، اور اس کو پڑھنے والے شیعہ بھی ہیں اور سنی بھی ہیں۔ یہ میدان ہے کہ جس کے اندر ہمیں جو ہے وہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، اور ان موضوعات کو اٹھانے کی ضرورت ہے، ان موضوعات پہ مشترکہ گفتگو اور کانفرنسیں اور مطالب بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ کتابیں یہ چیزیں ہیں کہ جو دلوں کو قریب لے کر آئیں گی، یہ چیزیں ہیں جو غلط فہمیاں دور کریں گی، یہ چیزیں ہیں جو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئیں گی، اختلاف کے ساتھ جینا سکھائیں گی، یہ والی چیزیں۔ ورنہ اگر اسی طرح کی مثلا سیاسی پالیسیاں ان کی وہ ہیں، ان کی یہ ہیں، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، تو اس طریقے سے تو کبھی بھی قربتیں جو ہیں وہ نہیں بڑھ سکتی۔ تو میرا زیادہ تاثر اس وقت جو ہے وہ رد الحاد کے اندر، میں اس وقت پیر والے دن لائیو جاتا ہوں اور میرے جو میزبان ہوتے ہیں وہ اہل سنت ہیں، کئی سال ہو گئے ہیں وہاں پر اسلامک اویکننگ چینل کے اوپر جاتا ہوں، اور وہ میزبان اہل سنت ہیں، اور وہ بڑے خوبصورتی کے ساتھ مجھے دعوت دے کر اور بڑا ہی عزت دے کر جو وہاں پر گفتگو کرتے ہیں، اور وہاں پر کوئی ہمارا جھگڑا نہیں ہے۔ وہاں پر جو ہیں وہ اہل سنت سٹیج پر بیٹھے ہیں، میں اپنے تشخص کے ساتھ تشیع کے نمائندگی کے اندر وہاں بیٹھا ہوں، اور خوبصورتی سے اسلام کا دفاع کر رہے ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں سمک بہت راشی، اچھا، زیادہ نہیں ہو بہت اچھا۔ بہت اچھا، آج اللہ ان کا برکت دے، اور بہترین ہے، بہترین ہے، اللہ خوش رکھے، بامراد رکھے۔ بہت شکریہ، بہت زبردست گفتگو ہوئی، اور وہی ہنستے مسکراتے، اور ظاہر صاحب کی تنقید سن کے جاوید صاحب نے جس خوشی کا اظہار کیا تھا میرے جب فون پہ بات ہوئی، تو ہماری یہ گفتگو بھی اسی خوشی اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ اختتام پذیر ہے۔ پھر کبھی اسی طرح کے کسی موضوع پہ انشاءاللہ، پھر انشاءاللہ بیٹھیں گے، بہت یہ مستفید ہوئے۔ اچھا ان کا ذوق احمد اب بات معلوم احمد ہوا، بات تو اب میری جو لا علمی ہے، تو وہ اگر یہ رد الحاد پہ کام جی، کر رہے ہیں، اور بہت اسی اچھا طرح ان کے لیکچرز کیا ہیں۔ ایک چیلنج آ رہا ہے، تو آپ ہمیں ایسا بنائیں کہ ہم مل کے کام کر سکیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں اپنے چینل کے اوپر لائیو پروگرام کرنے کا، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس طرح کے علمی مطالب کے جو مذہبی اختلاف سے ماورا ہو کر ہم بات کر سکتے ہوں، جس میں ہم ایک رائے حل پیش کر سکتے ہوں، چیلنجوں کا جواب دے سکتے ہوں، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم لائیو سیشن کے اندر ہفتہ وار بھی بیٹھ سکتے ہیں، ماہانہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، جس میں ہم ویسٹرن فلسفی کی بعض چیلنجنگ پوزیشنیں ہیں ان کو چیلنج کیا جائے، اور اسی طریقے سے بعض جو ایتھیزم کی طرف سے اشکالات، مثلا نقشے کے اوپر بہت ساری بات کرنے کی ضرورت ہے۔ میننگ آف لائف اس وقت بہت عمدہ موضوع چل رہا ہے جس پہ بہت تفصیل سے بات ہونے کی ضرورت ہے، اردو میں میٹر موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مثلا ایگزسٹنشیلزم جو ہے، اس کی جو الہادی ورژن ہے، اس کے اوپر بہت خوبصورتی سے کام ہونے کی ضرورت ہے۔ اردو میں ہمیں میٹر تنقیدی نہیں ملتا، توضیحی مل رہا ہے، لیکن تنقیدی میٹر نہیں ہے کہ ہم ان کے جو میسج ہیں اپنے لٹریچر کے اندر، اور جو وہ الہادی سوچ اپنے جو ہے وہ لٹریچر کے اندر دیتے ہیں، تو اس میں کس طریقے سے ہم
उस अकली तौर पर तनकीद कर सकते हैं। एक बेहतरीन मौजू है, इसको हम आगे लेकर चल सकते हैं। और इस तरह के बहुत सारे मौजूआत हैं, जैसे मार्क्सिज्म के फ़लसफ़ियाना बुनियादें हैं, इसी तरीके से आप दूसरे मौजूआत हैं उस पर लेकर चलें। तो एक इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, अगर आप की टीम कदम बढ़ाती है तो हम हाजिर हैं आपके स्टेज पर आने के, और हम हाँ, कदम बढ़ाएंगे इंशाल्लाह आप भी हाजिर। और हाँ। बात थैंक यू जैसे जी। मुश्तरक रख लेना, तो जी चाहे जी। वो अलग अलग हो या मिल के हो, तो वो एक दूसरे की तकवीत का सबब बने, ताकि इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होती है बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।